subscribe to Dostcast. Yo, what's up? 100K in this bitch. क्या हाल है दोस्तों? Welcome to another episode of Dostcast. मेरा नाम है विनम्र कसाना. As usual, if you have not subscribed, please subscribe because we release new episodes every Tuesday and Friday. I cannot fucking believe it. ये वाकई में हुआ है. We hit 100K subs on this channel. Our next goal is to keep taking Dostcast to the moon क्योंकि कभी भी हम satisfy नहीं हो सकते. More episodes, more guests, more crazy conversations. I have no fucking idea how this thing even blew up the way it did. Having said that, to commemorate 100 episodes and 100K, I have my good friends Arpit Bala और सिद्धार्थ तेवतिया उर्फ भप्पा on this podcast. Episode 1 में ये लोग मेरे साथ थे. They took a gamble by just being on this podcast that had no footing, no head. बस चल रहा था. And we're here. That was 1.5 years ago. It's been a long time. And I cannot even know कि मतलब मैं बयान भी नहीं कर सकता किस तरह से ये लोग बदले हैं, किस तरह से मैं बदला हूँ. It's always nice to have the OGs on and see how life has changed. So, I mean, this has become my full-time gig. So for sure, life has changed. And I guess एक बात और है यार. I know that a lot of you watch the podcast, पर I would really appreciate it if you make this a part of your commute as well. If you commute to stuff now because the world is opened up since COVID, officially like कम होना शुरू हो गया, तो सुना भी करो podcast यार. I want a bunch of listeners on the pod as well. I know if you're not used to listening to podcasts in the background, कभी अगर room साफ कर रहे होते हो, chill कर रहे होते हो, कुछ और कर रहे होते हो, you don't have to play this on YouTube. You can also play it on the audio platforms. तो वो करना शुरू करो. पर उसकी beyond, hey, listen, I'm super happy. I'm super grateful. आप लोगों ने दोस्तकास्ट को यहाँ तक पहुँचा दिया है. I mean, the next goal obviously has to be 1 million because what is the point of being on a hedonistic treadmill like YouTube, right? If you don't keep hustling. I don't know क्या होगा, but I know for sure कि अगर अभी है, I cannot even fucking imagine हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे within a year. Dostcast to the moon, my fucking friends. Dostcast to the fucking moon. I'm very happy for me. I'm very happy for my team. And I'm super happy for all of you who watch this podcast every Tuesday and Friday and listen to this podcast whenever you can. The episode with my friends Arpit Bala and Siddharth Tewatia urf Bhappa begins in 3, 2, 1. भाई मेरे को सपना आया और बहुत अजीब सपना आया कि हम ना किसी वो जो होता है ना अंडरग्राउंड बंकर टाइप सिचुएशन की पूरा शहर रह रहा है एक अंडरग्राउंड बंकर. हम कौन? मतलब रैंडम बहुत सारे लोग, ठीक है, और मैं, ठीक है, एक अंडरग्राउंड बंकर टाइप उसमें रह रहे हैं. सिद्धार्थ इतना कूल है कि अपने आप को थर्ड पर्सन में और उसमें ना भाई उसमें क्या है कि उसमें एक पुलिस है पर वो मॉरल पुलिस टाइप है. मतलब वो ऐसी पुलिस नहीं है कि तुम जेल चले जाओगे, तुम 100 साल वो रहोगे, बट ऐसा है कि तुम्हें डांट पड़ जाएगी बस, ठीक है. और मतलब तुम नहीं, मतलब पता नहीं क्यों मेरी बहुत गांड फट रही थी उस सपने में डांट पड़वाने से. और भाई मैंने देखा कि बहन जो मेरे को किसी उसमें बहुत सारा कोकेन दे दिया भाई. 1984 में क्या? Guys, welcome to Dostcast. क्या हाल है भाई? एपिसोड 100. Yes, और कह रहा है अंगड़ाई ले लेते हैं और थोड़ी ज़रा वाली बातें करेंगे. ब्रो मेरे को याद है आज भी डे 27 सितंबर की बात है. भैंचो 2020 है, 21 ये याद नहीं है साल कौन सा था क्योंकि 2020 ही होगा. 2020 होगा. भैंचो 2 साल हो गए. हाँ तो भाई मैंने कहा यार एक पॉडकास्ट कर लेते हैं. ये टेबल लगाई थी, एक सिंगल कैमरा एंगल आया, तुमने बकचोदी कर दी, बहुत बढ़िया मजे आए. और भाई ये काम चल पड़ा. आज एपिसोड 100 है. आई जस्ट वांट टू ऑफिशियली शाउट आउट टू माय ओजीज फॉर डूइंग दिस ब्रो. फकिंग ए फील्स ग्रेट. हमारा ही नहीं चल रहा. तेरे हाथ में आ गया. हमारा ही नहीं चल रहा. क्या बात कर रहा है यार, तेरा भी काम चल रहा है. ऐसी बात थोड़ी है भाई, आप भी कर रहे हो. आपका माइक ड्रॉप वाला इतना सक्सेसफुल इवेंट था. नहीं ऐसे नहीं है, आप भी कर रहे हो. कर रहे हो काम कर भाई. नहीं फॉर रियल मतलब भाई है. तू भी है भाई. तू भी है यार. ये भी है भाई. ये भी है. हाँ भाई. नहीं भाई फॉर रियल मतलब कैसे कह रहा. फॉर रियल ब्रो. मतलब मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी. और मैंने फिर अर्पित के थ्रू काफ़ी कंटेंट भी मतलब खींचा भी. अर्पित को भाई यार आ जाए एक पॉडकास्ट कर लेते हैं, तेरी मेरी अच्छी वाइब बनती है. कि भाई अपना ऊबर लेके अपने ज़िंदगी की भसड़ों को सॉल्व करके चलो भाई पॉडकास्ट पे बैठना है, आज जाके बातें करनी है. टू दिस लेवल ब्रो इट फील्स क्रेजी. मतलब मैं ये सारी फॉर्मल बातें ना बचा रहा था हमसे पहले. कोई नहीं कर रहे थे. ओके. वो दियो अपना जो तू पी रहा था.
just didn't want to be very public about this shit. देखो भाई, कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं होता. यूट्यूब पे बच्चे बोलते भाई आप कैमरे पे ना पिया मत करो, यूट्यूब डिमोनेटाइज कर लेगा. उनका दिमाग इतना छोटा श्रंक होता है कि ऐसा थोड़ी होगा. हमको गेमर है मैं जो रेसिंग चेयर पे बैठने वाले. हाँ हाँ मेरे रेसिंग चेयर नहीं है पर के लिए. हाँ भाई फिर भी यार तुम्हारी फूसी डे पे कब आ रही है? लगेगा टाइम लगेगा. अभी बहुत टाइम है यार. मतलब वो तुम्हारी कंपाइलेशंस भी कुछ यूट्यूब चैनल्स पर डली हुई हैं जिसके अंदर तुम्हारे आज तक तुमने जितनी भी डाली है ना फूसी एंग वाली, और लोगों ने डाल रखी हैं और तुम्हारे नाम के व्यूज़ कमा रहे हैं. मैं देखता रहता हूँ. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से कि ठीक है ब्रो, पब्लिसिटी है, तुम लोग कितना ही कमा लोगे, हम लोग भी नहीं कमा पा रहे. जब हम ही नहीं कमा पा रहे तो तुम क्या कमाओगे बहन? कर लो भाई. तो मतलब ठीक है ब्रो, हम लोगों ने कम से कम एटलीस्ट 2 अपलोड तो मारे. हम लोग अपलोड रेगुलरली कर रहे हैं मतलब. भाई पर वो क्रेजी सीन था गाड़ी के अंदर बैठ के ना, लाइक इट रिमाइंड मी ऑफ हिंदुस्तानी भाव, लाइक व्हाट यू गाइस डिड. गाड़ी में बैठ के रैप करना. और किसी मैंने देखा था एक बच्चे ने 1-2-3 लड़कों ने किसी और शहर के अंदर ऐसे भी सेक्टर 16 कहाँ हैं वो भी करा था. यू नो लाइक भाई आप लोगों का कल्चर पे बड़ा योगदान है, आप जानते नहीं हैं. आप अपनी अगर निजी चीज़ों से बाहर उठेंगे आपको पता लगेगा कि भाई जो लोग कल्चर के नाम पे स्नीकर बेचते हैं उनसे तो बेटर नहीं. Bro, I'm here for the culture. कौन सा भाई? कल्चर नहीं है भाई, बताओ. भाई मैं यहाँ कल्चर के लिए आया हूँ. लाइक यू नो इट्स ऑल अबाउट कल्चर, इंक्लूसिविटी, स्ट्रीट. या ब्रो हाइप. या स्ट्रीट क्या होता है ब्रो? जो पालम बिहार से एक लड़का है भाई. हाँ बताओ भाई, कल्चर के लिए क्या करना भाई? निकलना भाई. अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने तो गिग भी कर ली कई सारी. हाँ. है इंडियन रैप के अंदर कल्चर कोड एंड कोड ब्रो? ये कल्चर के लिए कराया इसने या ऐसा कुछ? लाइक इज देयर लाइक एन अंडरलाइंग ईथोस? आई डोंट थिंक देयर इज अ कल्चर. अभी ये इंडी है तो लोगों को लगता है इसको फॉलो करना कूल है बिकॉज इट्स लाइक सेमी पॉप पंक. हाँ तो लाइक पंक माना जाएगा, इंडी हिप हॉप या फिर कुछ भी तो पंक माना जाता है बिकॉज देयर लाइक कि हमारे को मेन स्ट्रीम गाने नहीं सुनने. तो इट्स नॉट लाइक कि कल्चर है. इट्स अ वेरी भाई मेरा कोई नाता नहीं है कल्चर से. मतलब दूर तक हम लोग तो दूर रहते हैं. हमारे को कल्चर का पार्ट नहीं बनना. मतलब कल्चर का पार्ट नहीं बनना ऑब्वियसली वो तो कल्चर डिफाइन करना है. हाँ भाई लेट्स गो विद व्हाट ही हैज सेड. ठीक है भाई. नहीं मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि यार कुछ ना कुछ तुम्हें भी लगता होगा ना, नहीं भाई अपना रैपर भाई है, इसके समर्थन में जाना पड़ेगा. लाइक वो ऐसा एक जैसे दोस्ती में भाईचारा होता है, ऐसा डू यू फील लाइक दिस कम्युनिटी? वो वाली चीज़ नहीं है. जैसे मतलब मैं जब सोचता हूँ जैसे कि सीधे मौत और MC कोड ऐसे सोचते थे कि भाई दिल्ली हिप हॉप सीन को आगे बढ़ाना है एंड एवरीथिंग. मेरे को नहीं लगता दैट्स स्प्लिट अप यू नो. उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ मतलब तुम कर लो. मतलब एक उस वाले उससे गए नहीं कि हम वो अच्छा ये रैप होता है, ये कल्चर होता है. मतलब जब हमने फ्री स्टाइल करना शुरू कर दिया था तो उस टाइम पे मतलब मेरे दिमाग में रैप से हनी सिंह वगैरह आता था और मैंने वो सब देखा भी नहीं था. मतलब मेरे को काफ़ी वो भी लगा था कि भाई ये गली बॉय जब आई तो मैं फ्लिप हो गया था कि बहनचोद ये सब हो रहा है. मुझे लगता था ये सब सिर्फ मैं कर रहा हूँ और कोई कर ही नहीं रहा है. so divorced from this reality. हाँ भाई कई सारे लोगों के लिए आई ओपनर था ना तो कि गली बॉय में रैप आ रहा है. बहुत अपने ना उसमें रह के कराया, मतलब एक बबल से में रह के करे जा रहा हूँ. अपैरेंटली सेक्टर 12 के अंदर मीटअप होते थे, रैप ग्रुप साइफर वगैरह. शाउट आउट टू मनदीप, शाउट आउट टू FCT, शाउट आउट टू सुमित्रा, शाउटिंग आउट टू डब शर्मा. हाँ भाई पर तुम्हारे चक्कर में फरीदाबाद से और रैपर्स भी इमर्ज हुए. इनफैक्ट मैंने एक किसका देखा था, मैंने एक जगह 2 का एक ट्रिब्यूट वीडियो बनाया था ना, कुछ डांसर्स ने पहन जो बड़ा क्रेजी था वो. 5 लौंडे. हाँ भाई मतलब हमने जितनी वीडियो के लिए मेहनत नहीं करी होगी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी भाई. वो भी वीडियो काफ़ी क्रेजी था. मैंने उसकी मतलब उस गाने की पूरी इंसेप्शन देखी थी स्टार्टिंग से. जब पहले उसके अंदर मशीन गन वाली साउंड थी, जब वो कह रहे हैं कि अरे बस कर भाई बस कर अर्पित बस कर देन यू कैर इट आउट एंड देन स्ट्रेट अप इसका वो सारा था. या आई स्टिल लिसन टू इट काफ़ी रेगुलरली. अच्छा लगता है मेरे को. चलो सही ऐसा लगता है अपने लड़के कर रहे हैं बढ़िया. ऐसा नहीं कि मतलब कि दैट्स द होल पॉइंट. जैसे पापा बोल रहा था ना, हम लोग भी मतलब हिप हॉप सीन में इट्स मोर लाइक कि मतलब हमारे साथ में जिसने किया है सब मैन. वो वाले पर्सपेक्टिव में मेरे को बहुत बढ़िया लगता है कि जब मेरे को और आर्टिस्ट मिलते हैं तो मतलब मेरा कुछ ये नहीं होता कि मैं कल्चर आगे बढ़ाना चाहता हूँ. इट्स जस्ट आई वांट टू मीट मोर पीपल लाइक मी एंड मोर पीपल जिनके साथ मेरा थोड़ा कॉमन ग्राउंड. तेरे जैसा कौन है यार जो दूसरों के गाना नहीं सुनता? भाई वो है अलग बात, बट उसके पीछे भी रीज़न है एक, मतलब कि इन्फ्लुएंस नहीं होना ज़्यादा. हाँ एग्जैक्टली, मेरे दिमाग पे चढ़ जाते हैं फिर. Fuck you. भाई देख ले 2 साल बाद जब ब्रंच में इंटरव्यू होगा ना, इस बयान को सुधार लियो क्योंकि ये चलेगा नहीं तब नेशनल लेवल पे. पप्पा कहता है ये बार मैंने पहले सोचा था.
नोटपैड दिखा रहा है, मैंने 2015 पे लिखा हुआ था भाई, लिखा हुआ है भाई। तो तुम लोग लिस्ट कैसे होते हो? लाइक जैसे फॉर एग्जांपल तू ऐसे जाके बोलता है कि यार भाई मेरे को एक गिग करना है, कुछ करा दो रिजुल? नहीं ऐसा नहीं होता, खुद ही बोलते हैं भाई आप कर सकते हो, गिग कर लो। मतलब हमारे को मतलब लोग पूछते रहते हैं एवरीथिंग। हम लोग ट्राई करते हैं टू अवॉइड, क्योंकि अभी मेरी और पप्पा की इतनी ज़्यादा डिस्कोग्राफी है नहीं कि हम लोग पूरा का पूरा एक गिग हेडलाइन कर पाएँ ढंग से, तो वी टेंड टू स्टे अवे फ्रॉम गिग्स। सो फूसी टेप इज दैट अटेम्प्ट की? फूसी टेप आ जाएगी, कुछ और सिंगल्स भी आएंगे। अभी पप्पा का है ना, आई लॉस्ट माई सेल्फ, जाके सारे सुनो बहनचोद। ठीक है भाई, हम भी सुनेंगे। हाँ, कॉपीराइट नहीं है तो हम यहीं भी चला देंगे, पर ये मत कहना 5 साल बाद भाई आपने पैसे ले लिए थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं देखता हूँ ब्रो, बहुत ऐसे एक्सप्लॉयटेशन के नाम पे तो बहन जो बहुत अच्छे इंडिया आर्टिस्ट के गाने वगैरह को लोग फ्री यूट्यूब वीडियोस में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और बहन जो मतलब उसे मोनेटाइज भी कर लेते हैं, पैसा पूसा भी कमा लेते हैं। मैंने जब भी करा है भाई पूछ के, भाई आप गाना यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, हम तो बड़े ऑनर्ड होंगे, आप कर लो यूज़। क्यों हंस रहा है तू? मतलब ये चीज़ ना मेरे को लगता है नई आई है, क्योंकि अगर मतलब मैं देख रहा होता, मतलब अगर मैं अवेयर नहीं होता कि ये चीज़ बुरी है, मतलब इसका एक परसेप्शन है कि ये भाई ऐसे बिना पूछे कैसे, ऐसे बिना पैसे दिए कैसे कर दिया, बट अगर मेरे को इस सब के बारे में नहीं पता होता, जो कि मेरे को नहीं पता था पहले, और मैं देखता कि किसी ने मेरा गाना शेयर किया, तो मेरे को अच्छा ही लगता। हाँ, to be very honest, मतलब हम लोगों के जितने गाने फटे हैं and everything चले हैं, it somewhat relates to like other YouTubers or other creators somewhat appreciating it and using it somewhere or the other. हमारे पे तो उसी गैंग वाले उस पे किसी ने रिएक्ट भी करा था, बाहर के किसी इंसान ने। आई वाज वाचिंग वीडियोस यूट्यूब, ऐसे नहीं होते जो फॉरेन यूट्यूबर्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, या समवन रिएक्टेड टू सेक्टर 28 फॉरेनर, प्रीटी श्योर दे डिड, या कौन सी नेशनैलिटी? ये पता नहीं, देखेंगे कौन सी नेशनैलिटी? बैंकॉक के नहीं थे। पप्पा इज लाइक कि वर दे ब्लैक इनफ, बिकॉज तभी मैं अपने आप को हिप हॉप हेड मानूंगा। उसका ओपिनियन मैटर तभी करेगा इफ ही हैज मेलानिन ऑन हिज स्किन। या आई फील लाइक गोरा का मैटर नहीं करेगा। आई वाज जस्ट री-लिसनिंग टू एमिनेम ब्रो एंड आई रियलाइज दिस गाय ही स्टिल गॉट इट। नया वाला एमिनेम, नया मतलब 2001 की जो एमिनेम शो वो सुन रहा था। हाँ, तो 2001, या आई वुड ऑलवेज से कि एमिनेम जब तक ड्रग्ड आउट था और नशे में था ना, ही वाज एमिनेम ड्रग्ड आउट नशे में था। आई थॉट ही वाज अ सोबर गाय ऑल हिज लाइफ। नहीं, अभी वो 2008 के बाद हुआ था। 2008 एमिनेम यूज्ड टू गो हार्ड भाई, क्या कोक चीज एवरीथिंग। हाँ भाई, और उसी टाइम पे उसके सबसे अच्छे गाने निकले। हाँ भाई, उन गानों में कुछ और ही कर रहा था भाई वो, मतलब उसके बाद दे वर लाइक टोन डाउन हो गया, लाइक सुपरमैन। टोन डाउन नहीं, बट टोन डाउन फिनिश आ गया था भाई। फिनिश तो अच्छा था, बट लाइक उसके बार्स वार थोड़े से रिप्लीट हो गए थे। जैसे कि वो जानता है कि रॉनेस जो थी ना, वो रॉनेस, वो जो उसका एक वर्स था पूरा का पूरा जो उसने गाने पे कर रखा था, वो रिलीज था, उसको पता ही नहीं उसने वो कब लिखा है, क्या लिरिक्स हैं, उसको पता ही नहीं उसने कब रिकॉर्ड किया है। पैंचो नहीं तो वो क्या ड्रग वर्क करता था? आई थॉट ही वाज अ स्ट्रेट एज गाय ऑल हिज लाइफ। नहीं यार, स्ट्रेट एज होके ऐसी बातें कोई नहीं कर सकता यार, चाहे नहीं मेरे को पता है डिक्शनरी चार्ट जाता था वो, बट लाइक दैट्स ऑल आई नो। लाइक व्हाट लाइक क्या लाइक फुल, ये उसकी बेटी भी तो है हेली विलियम्स, शायद जब वो बाप बना उसने कहा भाई फटने से पहले से है आई गेस, है ना? अच्छा, he was a father when he पता ही नहीं था। हाँ, he was already a father। उसका बहुत गलत सीन चल रहा था यार, कोई घर वर नहीं था, गाड़ी 3 बार 8 माइल देखिए भाई। हाँ भाई, उसके 8 माइल में भी तो वही दिखाते हैं कि बस वो बैटल वगैरह जीत जाता है, ये थोड़ी दिखाते हैं कि फट गया था वो। हाँ, मतलब 30 की उम्र पे फटा है वो, हैं 29-30 की उम्र पे फटा है वो। So what was the album that got him on the scene? Not Relapse. नहीं एक्चुअली मतलब नहीं, not even My Name Is, like जो फटा था वो वही था कि उसने ना मतलब मिक्स टेप्स बना रखी थी जिसमें वो बहुत अच्छा रैप करता था, वो बांटता रहता था। एक डॉक्टर ड्रे के हाथ में मिल गई और डॉक्टर ड्रे ने उसे बुलाया और तब बना था माय नेम इज करके गाना, और वहाँ से वो मतलब वो पूरा फटा। डॉक्टर ड्रे और एमिनेम की कहानी समझौता एक्सप्रेस है इंडिया पाकिस्तान की। भाई कोई नहीं, आप उस तरफ के ऊपर आ जाओ। बट आई लिसन टू गेस हूज बैक वाला गाना है, उसका नाम क्या है यार? गेस हूज बैक Without Me bro, what a song। मैं उसकी वो भी देख रहा था डिकोडिंग, जो वो कूल लोग नहीं करते इंटेलिजेंटली की लिरिक्स का मतलब क्या है। भाई वो कह रहे थे यार कि कुछ भी कर लो, एमिनेम अपनी जगह बता रहा है कि मेरे बिना बहन चो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं वो गोरा हूँ जिसने आगे तो मैं बहन चो डिक्शनरी दी है। ट्रू या ज़्यादा लोग थे भी नहीं एमिनेम से पहले, बीस्टी बॉयज थे, वनीला। बट बीस्टी बॉयज रैप करते थे। हाँ भाई, बीस्टी बॉयज रैप करते थे, बट लाइक इट वाज वेरी बेसिक, इतना ज़्यादा कोई एजी नहीं था। मतलब एमिनेम started off with this like कि तुम hard भी हो सकते हो without being a gangster. Without being a gangster. Yeah. I've seen this famous clip of him जहाँ वो उसको एंडरसन कूपर को या किसी इंटरव्यूअर को ऑरेंज और पॉरेज वाली वो समझा रहा है। Like that shows like a fucking craftsman at display bro. Yeah, bro, but it's damn अजीब and cringe and corny bro. क्या? I can rhyme. ठीक है, but like
कुछ बट नहीं ब्रो लाइक तू ऑरेंज से राइम कर ऑरेंज रेंज और मतलब ऑरेंज रेंज रोवर ब्रो कम ऑन आज के लोग कर सकते हैं, उस टाइम के लिए बड़ी बात थी. मतलब आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग हिम बट लाइक वो चीज जो होती है ना कि आई कैन राइम, ठीक है, सो कैन मेनी अदर एमसीज, सो कैन मेनी अदर रैपर्स ब्रो, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ रैपिंग ब्रो. ओके यू कैन राइम, ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम हिम, आई एम जस्ट सेइंग कि ब्रो पर इस रैप साउंड्स वेरी क्लियर, या नो मम्बल एट ऑल, तुम सब कुछ सुन पाते हो. या सुनने में आया लोग बड़े अजीब विचार रखते हैं एमसी स्टैन के बारे में. I don't know man, I kind of like him. I fucking love him bro. Yeah. He's crazy. मुझे कल कौन आगे बोल रहा था bro, he raps about erectile dysfunction. I was like what the fuck? I joke about erectile dysfunction. Nobody's like oh what the fuck. क्या मतलब does it mean that he has it? I don't know man, I think like MC Stan नहीं मतलब बाहर के भी बहुत सारे रैपर्स जब इतना ज़्यादा मॉली और ये सब कर रहे होते हैं तो फिर ऑफ कोर्स गाने में रियलिटी तो आ ही जाती है, बिकॉज हिप हॉप इज ऑल अबाउट कीपिंग इट रियल डॉग एंड आई कैन नॉट कीप इट हार्ड इनफ. क्रेजी. मैंने उसकी कई से लाइक बियॉन्ड द ऑब्वियस अस्तक फिरुल्ला एंड फिर और 3-4 और गाने सुने. मेरे दोस्त ने मेरे को स्नेक सुनाया. क्रेजी है जो एक नया स्टाइल मिला है जो है ना. बट लाइक आई फील लाइक कि MC Stan का जो स्टाइल है ना इट शुड बी लाइक यू नो जैसे वो पहले करता था. बट जैसे ही स्टार्टेड नहीं नॉट डिसिंग लाइक यू नो मस्ती मौज बकचोदी एंड ऑल दैट, बट जैसे ही इज लाइक नो आई वांट टू ड्रॉप सम बार्स ऑन नॉलेज. इंसान पैसा आई वाज लाइक ठीक है ब्रो ओके I'm waiting for another track जिसके अंदर तेरे को बहुत सारे लोग घेर लेते और चाकू मारते हैं. पर कितना मुश्किल नहीं है लाइक वंस यू गेट फेमस लाइक इमेजिन लाइक अब डिवाइन का स्ट्रीट कट क्या है क्योंकि ही इज नाउ लाइक आउट चिलिंग ऑल द टाइम. या ये जेजी के साथ भी हुआ था. बहुत सारे लोग उसको बोलते थे कि अब तो तू गैंगस्टर है नहीं तो हाउ कैन यू रैप अबाउट बीइंग गैंगस्टर. हाउ डू पीपल रिकवर फ्रॉम दैट जब वो बात करते हैं मोर मनी मोर प्रॉब्लम्स अब मैं टाइटल में इन्वेस्ट करूंगा आई विल बिकम अ बिजनेसमैन नाउ. या they nostalgic gangsters like बुड्ढा याद है जब हम एक ही चलाया करते थे क्या दिन थे. बूढ़ा वीटो कोरलियोनी बैठा हुआ है कुछ नहीं पता होता था यार. जब तेरे पेट में सिरिंज लग गई थी और मैं तेरे को हॉस्पिटल ले गया था फिर उन्होंने अंदर नहीं आने दिया था क्योंकि हम ब्लैक गेटो से थे. हाँ भाई याद है यार क्या दिन थे. I recently listened to I Like It by Cardi B. Apparently मेरे को पता था वो गाना एग्जिस्ट करता था. Then I really listened to it. I was like bro Cardi B मतलब मेरा मन है कि मैं उसकी म्यूजिक वीडियो के अंदर आऊँ. Cardi B is so fucking great. Yeah bro true. वो मुफट है मतलब दिल्ली में ऐसी लड़कियां सरोजनी नगर मतलब मेट्रो स्टेशन के आसपास बहन सुन ना पायल मत लगाइयो तेरा काजल बिखर गया पूरा वो लड़का गुर्रा में. हाँ भाई वो है ऐसे क्या कुछ जेम्स कॉर्डन पूछ रहे तो कौन सी गाड़ी है. मेरे पे मेबैक है, मेरे पे ये है, मेरे पे वो है. स्ट्रिपर रही है ना तो उसको आदत है मतलब कि अपनी ग्रेस को ख़त्म करके एक ऐसी मूफर्ड वाइब रखना. बट ब्रो लाइक दैट सॉन्ग आई लाइक इट इज सो ग्रेट. बाकी जो लैटिनो गा रहे होते हैं वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं. वो सिर्फ लैटिनो मार्केट को अपीज करने के लिए बनाया है एंड के कुछ मिनट्स उस गाने के अंदर. आई मीन हाँ या ट्रू हो सकता है. मैंने सुना नहीं है लाइक इट. मैंने भी सुना. मैं बहुत कम सुने कार्डी बी के गाने पर जो भी सुने ना मतलब मैंने ऐसे सुने कि यार शर्म से. आई एम लाइक फ्रीक्ड आउट आल्सो बाय कार्डी बी. उसका गाना है वॉप या वैप. वो मतलब शी इज लाइक इंटिमिडेटिंग यू उधर पुसी. हाँ तो पूरा गाना ही हुई तो सॉरी भाई अशोक का JGLS. No, it's not about that man. It's not about that. I'm all for like but what about your pussy man? what about it? It's not about fucking like you know leftism या फिर ऐसा कुछ नहीं भाई. बताओ मतलब हाँ मतलब जैसे ये बात तो है उसने एक रोल रिवर्सल तो करा. ये काले कहते हैं मेरा इतना बड़ा है मैं ऐसे देता हूँ ये करता हूँ वो करता हूँ एकदम पे कह रही है ये खा जाएगी तेरे को बहन. हाँ मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कार्डी बी ने स्टार्ट किया था बहुत पहले से. लड़कियां कह रही है go queen. That pussy attacks. That pussy is a Venus flytrap. Pussy is power. Yeah. I mean ये ना एक रिफ्रेशिंग साउंड हमेशा चाहिए होती है हर एक एरा को. जैसे कि जब बहुत सारे हार्डकोर रैपर्स आ जाते हैं ना लड़कों में ये एक चाहिए होती है एक लड़की जो मतलब उतनी मुंह फटो और अपनी जगह बनाने की कोशिश कर लें उनसे. भाई मेरे को लगता है बाय यूजिंग हर सेक्सुअलिटी. कार्डी बी का तो पता नहीं बट डोजा कैट नेगोशिएटिंग वायलेंस चल रही है मतलब डोजा कैट चल रही है हिंदियों में स्पेसिफिकली मतलब लाइक व्हाई इज इट लाइक टेलर स्विफ्ट इज नॉट लाइक ये गोरी क्यों नहीं खींच पाती ये काम जो ये खींच भाई क्योंकि वो जो स्वैग होता है ना वो शायद बिकॉज वो गोरियां 15 इयर्स की नहीं है. दे हैव लाइक चिकन सूप फॉर टीनेजर्स वाली वो बकचोदी जो भी थी आई डोंट नो क्या बकवास था वो. अब वो औरतें बाहर जा सकती हैं. क्या सिडनी शेल्डन वाली किक दे दी मेरे को जो. हाँ भाई तूने पढ़ी है क्या? नहीं नॉट बट आई रिमेंबर कि वो किस तरह की किताबें होते हैं चिकन सूप फॉर द सोल. हाँ
वो वाली वाइब है यार इन सब की ना, मतलब I know I'm offending a lot of people right now, but fuck, मैं तो नहीं हो रहा। है तो है भाई। भाई आप अपने बारे में मतलब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, हम तो नहीं ऑफेंड हो रहे। मैं तो नहीं हो रहा। हम तो on the DL यही I'm not हम तो I cannot speak for all these women. I choose not to speak for the women out of jealousy and hatred. because भाई someone asked me यार आप I'll only speak against लौंडे क्यों आते हैं? I'll only speak against हाँ सॉरी कह रही यार आपके पॉडकास्ट पे लौंडे क्यों आते हैं, वेयर इज द इंक्लूजन। मैं कहा यार भाई मतलब मैं कोई ऐसा एंकर थोड़ी हूँ, मेरे को कोई ज़रूरी थोड़ी है, सिर्फ मैं जब मन करता है लेके आता हूँ। ऐसे कोई वो थोड़ी है कि मतलब भाई तेरे को पता है कितना कितना अजीब है अपने मम्मी पापा को बोलना मम्मा यार मेरे उसमें ना लड़कियां नहीं है, लड़कियां बुलानी पड़ेंगी। नहीं मतलब अब जैसे नेचुरल सी बात है, लाइक यू ऑल जस्ट लाइक द नेचर ऑफ माई जॉब, आई जस्ट एंड अप हैंगिंग आउट विद मोर डूड्स देन वुमेन, राइट? लाइक तो व्हेनेवर सिसहेट, हाँ। तो भाई अब मतलब ये क्या अजीब तरह की चीज़ है कि अब किसी और के सेनेट की वजह से तुम बेंच में इंक्लूजन देखो कि नहीं नहीं यार वो ना कह रहे थे कि थोड़ी वो भी तो आप भी आओ। Of course, organically होना चाहिए। I think this space is not like safe enough. अगर थोड़ा safe होता तो we might have had some female representation. Like it's cool. Also, who the fuck wants to come to Faridabad? Yeah, sure. like let's just even really if address. Is तो कहाँ पे हो रहा है पॉडकास्ट? फरीदाबाद। इज इट रियली अ सेफ स्पेस? इज इट दो ऑल द वुमेन हु हैव बीन हियर नॉट ऑन द पॉडकास्ट, उनके उबर ड्राइवर ने बोलते मैडम वहां मत जाओ, मर्डर ही हो जाएगा आपका। वो खुद ही उनकी फट जाती है कि नहीं वो एक्चुअली वो इसलिए होती है कि वो ना दिल्ली से बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं। इतना क्या गुड़गांव से फरीदाबाद आने में I don't bro. know what's the problem between women and Faridabad. I don't Yeah, know. I have bro. no idea. Fucking Like, You only get dissing Faridabad. you only get shot in Ballabgarh once a year. That's about it. bro. Like nothing bad Yeah. happens. Nothing. पप्पा के दोस्त के पापा की बस एक बार ही चोरी हुई है ब्रो। भाई बस एक बार ही हुई है, वो भी दिन दहाड़े, बस एक बार ही हुई है। और क्या I don't भाई? see the problem bro. Yeah bro, मतलब It's much safer than भिवानी, सोनीपत, भाई रोहतक। मैं कैथल गया हुआ था, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था फरीदाबाद उस टाइम पे, क्योंकि ना जब तुम once you cross सोनीपत and you go to पानीपत, कैथल, तुम्हें रियलाइज होता है कि हरियाणा के हम कितने अच्छे एरिया में रहते हैं। हाँ, जहाँ पे मतलब आसपास लोग हैं और कैफे हैं, उन जगहों पे भी है, लेकिन रात को मेरे को ऐसे लगता है किसी ढाबे पे रुक के भैंस मर जाऊँ वहीं पे ही। मार दो मुझे, मार दो, नहीं हूं मैं तुम्हारे जितना गुजर। ऐसे वो जाट डोमिनेटेड एरियाज है। अच्छा सॉरी, Bappa will feel more at home. Let me meet the primal of my kind. तू बोल लेता है थोड़ी ऐसी हरियाणवी में या उस थोड़ी सी? ओनली व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। मैं जब अपना जाट कार्ड पुल करता हूँ तो मैं अपना आधार कार्ड भी पुल करता हूँ, क्योंकि आधे ज़्यादा टाइम लोगों को लगता है कि आरसी के साथ, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई मैं पंजाबी हूँ, तो किसी जाट को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पप्पा की वजह से। आई डिडंट नो दैट इट वाज अ कास्टिस्ट स्लर। हम तो पप्पा पप्पा बोलते थे कि बचपन से पप्पा बोलते हैं। ओ हाँ, कोई कास्टिस्ट स्लर है क्या पप्पा? पंजाब में नाम पड़ गया। उसके बाद हमें पता चला कि ये मतलब कुछ है, कुछ मतलब सरदारों के बीच में सीन है। पप्पा पप्पा इज एन ऑफेंसिव वर्ड। वहाँ पे रैप कैसे करेगा पंजाब में अब? I don't know man, पता नहीं यार, पंजाब हमारा ऑडियंस है ही नहीं, है ही नहीं। इट्ठे पुट्ठे पुट्ठे लास्ट टाइम पप्पा इस पॉडकास्ट पे आया था ऋषु के साथ, उसने एक ऐसी बात बोली थी, किसी क्लिपें बनी थी इतनी ज़्यादा, और भाई पप्पा मुझे कह रहा था भाई यार ये सीन, मैंने कहा भाई कुछ नहीं हो सकता, ये इंटरनेट है, तेने मौज मौज में कह दी, मौज मौज में काट रहे हैं अब क्लिप, ऐसा हो जाता है। खैर बहरहाल भाई, अब आप लोग साथ में परफॉर्म कब कर रहे हैं? हम लोग मेरी एक बारी EP रिलीज हो जाए तो कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कौन है? AOD गॉट पॉपिंग है या फिर कीर? AOD है। AOD ने 2 बनाए हैं। AOD और कीर ने ऐसे कर लिया था, ड्रैगन बॉल जी में करते हैं ना, और अब कोई काम नहीं हो रहा, अब कोई काम नहीं हो रहा, गोजीटा अब कोई काम नहीं हो रहा, और मतलब विलन की तरह अर्पित बस खड़ा हुआ वहाँ पे ऐसे। 2 एपिसोड निकल चुके हैं। बट हाउस इट गोइंग? क्योंकि मैं तो मतलब मैंने AOD के गाने नहीं सुने, AOD से मैं सिर्फ चिल करता हूँ, और मैंने कीर वगैरह के सुने हैं। लाइक व्हाई डिड यू डिसाइड लाइक कि हम, क्योंकि और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर है ना, मतलब व्हाई AOD? व्हाई AOD एंड कीर? बिकॉज यू और लाइक फ्रेंड्स ना, मतलब ऐसा तो नहीं है, मतलब कि AOD से तो मैं मतलब कीर से पहले मिल चुका था, आदि को तो मैं जानता था पहले से। हाँ क्या? काफ़ी पहले से, हाँ काफ़ी पहले से जानता था। तो फिर मतलब उसके साथ में मतलब जब मेरे को पता चला था ही इज प्रोड्यूसिंग एंड ऑल, तो मतलब मैं जानता था कि ये कुछ ना तो कुछ चल ही रहा है। तो उसने 1-2 बारी मेरे को ऐसी बीट सुना दी। और तुमने जैसे बाहर के, लाइक हैव यू नेवर लाइक ट्राइड कोलैबोरेटिंग विद से प्रोड्यूसर्स फ्रॉम दिल्ली या? सी आई ऑलवेज टेंड टू
कोलैबोरेट विद पीपल दैट आई हैव लाइक कॉन्फिडेंस कि ये मेरे साथ काम कर लेंगे, है ना? कि मतलब अगर काम रुक रहा है एंड एवरीथिंग मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आई टेंड टू लाइक स्टिक टू दोज पीपल ओनली जिनके साथ आई एम कॉन्फिडेंट या श्योर. आई डोंट वांट डिलेज. आई हैव सीन कि मतलब जब तुम बैठे होते फरीदाबाद में और तुम्हारा प्रोड्यूसर या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग वाला बंदा पुणे में है, तो बेसिकली सेम थिंग बट कन्वीनियंस पे आ जाती है बात कि कौन ज़्यादा पास में रहता है, किसके साथ आप ज़्यादा जाके बैठ सकते हो. पर तुम यार इतनी पूरी पूरी रातें तुम भैंचो लगे रहते हो यार. मैं तो वो देख के हैरान रहता हूँ. मतलब यू गाइस लाइक व्हेन आई कॉल हिम इज लाइक ब्रो मैं शूट पे हूँ, मैं भैंचो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ पूरी पूरी रात. मतलब मज़ा आता है ब्रो. मज़ा आता है भाई. वो नशा होता है. वो नशा होता है भाई कि तुम रात भर बैठे हुए हो कर रहे हो. आई वोंट कॉल इट नशा एंड ऑल बट लाइक आई लाइक इट बिकॉज कि मतलब 4 बजे तक नहीं सोए ब्रो. मम्मी पापा को पता भी नहीं है. नहीं मतलब बट इज इट दैट टाइम कंज्यूमिंग? कैन यू नॉट जस्ट गो इन एंड से कि ब्रो 15 मिनट है, मैं अपनी भैंचो लिख के लाया हूँ, आई एम गोना ड्रॉप दिस एंड मेरे को फिर खाना खाने जाना है. लाइक इट्स नॉट लाइक भाई तुम आर्ट क्रिएट कर रहे हो, तुम धंधा थोड़ी कर रहे हो. हाँ भाई एक्चुअली मैं धंधे वाला ना थोड़ा बहुत मतलब वो नहीं हो पाता भाई. टू बी वेरी ऑनेस्ट आई सॉर्ट ऑफ गेट कि पापा क्या कहना चाहता है. ही इज़ नॉट सेइंग कि मतलब कि करना है तो करना है भाई. वहाँ पे ना ऐसी चीज़ होती है कि कभी कभार तुमने लिखा हुआ होता है बहुत कुछ अच्छा, बीट पे बैठ ही नहीं रहा, बीट के हिसाब से लिखो, बीट के हिसाब से उसको बिठाओ. तो मतलब बहुत ज़्यादा ना हिट एंड ट्रायल होता है इस वाले मेथड में. हिट एंड ट्रायल होता है एंड भाई एक प्रोसेस होता है कि मतलब मान ले तू और मैं बैठे हैं, अब हम बीच में बातें भी कर रहे हैं, फिर हम बातें करते करते अच्छा आ ये वाला पार्ट रिकॉर्ड करके देखते हैं, चल ठीक है ये वाला रिकॉर्ड करा, ओ भाई बढ़िया लग रहा है, कोलैबोरेटिव फिर भाई थोड़ा सा मतलब चल रहा है, बीच में छोटी छोटी और चीज़ें हो रही हैं, कभी खाना आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, साथ साथ हो रहा है, फिर दोबारा सुन के देख रहे हैं, थोड़ी देर पॉज हो रहा है, बीच में कोई और वीडियो खुल गई यूट्यूब पे. तो मतलब तुम समझ रहे हो पेशेंस लेवल की बड़ी बात है. वो बैठता होगा पूरे पूरे दिन तुम्हारे साथ. बताओ भाई कीर भाई के पेशेंस के बारे में. हाँ ब्रो बहुत ज़्यादा. द मैन जस्ट लाइक आई थिंक अगर उसके पास निकोटीन नहीं होता ना तो ही वुड he would snap like this. Everyone has their vices to get shit done, you know. Yeah, I think so. कोई आदमी पोथी पढ़ता है, कोई आदमी कुछ और पढ़ता है, तो करना ही पड़ता है. Because like I don't know, like मतलब मैं भर्ग से मिला था, भर्ग is sober as fuck. I was like bro, like how do you do it? Like how do you just sober ये सब गाने बनाता है? Like what is your you know like kick? Like कुछ नहीं है bro. हाँ बस वही मज़े आते हैं bro. It's crazy. So like if I want to go and like drop a bar और मेरे को नहीं आता तो फिर मैं like what should I do? Like should I like just go to rap पहले school? तो मतलब नहीं नॉट रैप स्कूल नहीं जाना होता. मतलब आई वुड से कि 2-3 महीने के लिए बस ऑब्जर्व करो रैपर्स कैसे करते हैं, उनका प्रोसीजर क्या होता है रिकॉर्ड करने का. इंटर्न बन जाओ किसी रैपर. हाँ मतलब वही देख लो कि स्टूडियो में कैसे काम चलता है एंड एवरीथिंग, तो फिर समझ में आ ही जाता है एक पॉइंट. भाई आपका जे बना दूं? अपने माल से बनाइए हो. कोई मना नहीं करेगा भाई कसम से. हाँ भाई हमारे को करना है भाई. हमारे को इतना बड़ा बनना है कि हमारे यहाँ पे लोग आए जो पप्पा के लिए बोले भैया क्या चाहिए आपको टोबैको रोल चाहिए. आपको रोल टोबैको चाहिए. भाई क्रेजी है. लाइक आई थिंक लाइक द लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड गेट टू इज जो डॉन नंबर 1 में नहीं दिखाते वो लोग उसके कुर्सी बन जाते हैं. कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है कुर्सी पे बैठने का, कोई बंदा तुम्हारी कुर्सी बना और तुम बैठे हुए हो. The weirdest part for me was at the mic drop gig, the guy who was getting tattooed on stage. Like this guy is gonna regret it. Yeah. So वो उठेगा बोलेगा अरे यार ये क्या करा दिया. मतलब I like the artist but like that much. Yeah, I know, right? But it was cool. मैं कहा रजुल भाई बढ़िया spectacle. There is something that happens like you know जब वो mob mentality आ जाती है तुम्हारे को बहुत सारे लोग देखते हैं अब तो करना है और जैसे तुम घर पहुंचते हो shit I am now accused of. What was the tattoo? What did he get made? Do you remember? एक आँख बनाई थी, एक आँख बनी थी. But it was nice, bro. Achha, I thought he had like the artist's name written on it, which is why I was like, ये कौन है? मेरा एक्स नहीं है सच में. सच में. I think ironically वो टैटू बनवाना चाहिए जो गांव में लोग नहीं करते कि वो भटक जाए तो उनका नाम ये है. You all get that. एड्रेस भी लिख दो यहाँ पे. If lost, please return to sector 28. नहीं भाई. सुने ना वो स्किल्ड. बट क्या बात कर रहे थे हम? यही बकचोदी कर रहे थे. टैटू बनवाना. I would never get tattoos. ब्रो मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या बनाना है बट लाइक आई डोंट फाइंड कि मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो इतनी परमानेंट है मेरे लिए कि मतलब कि वो मेरे शरीर पे हो. What? कि वो मतलब शरीर पे हो भाई जिंदगी. That's why I believe in those वो जो बाइकर नहीं पहनते टैटू स्लीव्स. एक लड़का था हमारे स्कूल में वो पहन के आता था स्कूल में. स्कूल की यूनिफॉर्म के ऊपर. हाँ अनआयरॉनिकली और ऐसे बैठता था.
अगर तो मेरी जिंदगी में ना होता ना ये आयरॉनिकली वर्ड्स ही ना होते, मतलब मैं इनसे वंचित रह जाता इस चीज़ से. आई लाइक हाउ यू हैव टू जस्टिफाई व्हाटएवर यू डूइंग, कि तुम ऑनेस्टली कर रहे हो जेन्युइनली, मतलब उसके पीछे कोई इल विल नहीं. हाँ मतलब उन दिनों में तो मतलब कूल था वो. इल विल तो मतलब कोई चीज़ ही नहीं होती थी. एवरीथिंग वाज अनआयरॉनिक. एक टाइम था मतलब तुम किसी आदमी को ऐसे देख के बोल ही नहीं. और उस टाइम पे जो बंदा होता था ना, इसको पता होता था कि आयरनी होती है और वो ऐसी बातें करता था, वो चूतिया था सबके लिए. मतलब वो जो पागल है उसको पागल डिक्लेयर कर दिया. वो जो होता है ना बस का सीनियर जो आगे बैठता है, बिकॉज ही इज कूल फॉर द किड्स बट नॉट लाइक कूल टू गेट विद द सीनियर्स. हाँ, ऐसे आउटकास्ट वाला सिस्टम तो होता है. पर यार तुम्हारे गिग पे आया हुआ था, हमारे स्कूल के भी बड़े बच्चे आए हुए थे, कह रहे यार हमें पता था शुरुआत से कर लेंगे, इसने कर लिया. सही है यार. मेरे को तो नहीं दिखे. शायद वो तेज से नहीं मिले होंगे ना, उनकी नज़रों में तो आज भी सांप होगा. अच्छा था. आई लाइक दैट. I like how all rappers have some deep seated trauma around friendship. सभी ये बोलते हैं मेरे दोस्तों ने मेरे को दगा दिया, अब आगे बढ़ूंगा मैं. नहीं, I don't think I cannot say but I've heard some rappers कि दोस्तों ने दगा दिया. I feel it looks good in a song. That's why people say it. It looks good as a origin story. मतलब यार it's like betrayed warrior हूँ. हाँ वही भाई, मतलब लौड़े का betrayed warrior. तू साले जो APS गया था तू. तेरी दोस्तियां लाइफ लॉन्ग होती हैं. APS क्या है? FMS आर्मी पब्लिक स्कूल. आर्मी पब्लिक स्कूल. अच्छा APS. DPS APS APJ. मज़े आ रहे हैं यार. काफ़ी समय पहले आए थे तुम लोग बहन यहाँ पॉड करने के लिए. मैं यूजुअली तो सोचता हूँ कि क्या बात करनी है. मैंने पुराने यार दोस्तों का तो वाइब भी किया जा सकता है. हाँ, इनके लिए अब क्या ही रिसर्च करें. क्यों ही कुछ करें. नहीं ऐसी रिसर्च मैं क्या करूँ. गाने गाने मैं सुनता, गिगों पे मैं जाता, भाई डूइंग वेल मैं मैसेज करता, और क्या करूँ. मतलब it only means well if somebody is taking you for granted. means कि मतलब हाँ कुछ है. नहीं ऐसे granted तो नहीं. मैं तो आज भी मानता हूँ भाई, नहीं बढ़िया कर रहे हैं हमारे लौंडे. बाकी मैं तो कहता ही रहता हूँ भाई, सेक्टर 28 जगह दो सुनता ही रहता हूँ. और गाने चाहिए यार, ताकि ना थोड़ा कल्चर में हम. अब वो जो तूने क्वेश्चन पूछा था गिग वाला, उसका यही आंसर है कि और गाने चाहिए. हाँ मतलब वही तब होगी. ये तो है. तब करेंगे. हाँ तब करेंगे. I sort of go on a national tour also. बहुत फैन मिल जाएंगे हैदराबाद कलकत्ता. हाँ प्लान तो यही. अब वही है ना, एक बार एक सब्सटेंशियल चीज़ आ जाए हाथ में अच्छी खासी, जो मतलब तुम सुना सकते हो पूरा ढंग से शुरू से लेकर एंड तक. तो फिर सही 1 घंटे का तो सेट बनना चाहिए भाई कम से कम. तेरे को मुश्किल नहीं होती यार, जैसे तू अब कॉमेडी से हटके मैं उसी के ऊपर ही जा रहा था. मतलब a lot of people followed me because they wanted to see me do stupid shit on the internet. But now अब मैं आँखों और सब कर रहा हूँ ना. They're all like हाँ आँखों. अच्छा अब now say the funny word. Genuine बोल. Genuine बोल ना. आदमी अपने उसके अंदर ही फंस गया है. नहीं मैं फंसा नहीं हूँ. It's sort of justified. मतलब it's okay. मतलब तुम्हारी core audience. I think it's too soon for फट गया है. Eminem जैसे लोग फंस जाते हैं. हाँ ठीक है, ऐसे लोग फंस जाते हैं. अजय को लोग बोलते हैं कि भाई पुराना कैरी है वो. तो भाई ये वो लोग फंसते हैं जो अजय के साथ पिक्चर में है ना, यश सिंह. अजय स्क्वायर. पहले उसने बोला अजय की एक पिक्चर आई है. मैंने कहा अच्छा भाई हो गया अजय देवगन. कह रहा अजय के साथ आया. मैंने कहा हैं. फिर मैंने कहा ओ अच्छा एक ई वाला है, एक ए वाला है. क्या मूवमेंट आ गया बहन. मतलब आदमी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है एक पिक्चर के अंदर. जैसे वो जो मेटा चीज़ें करते हैं ना बोजाक हॉर्समैन में, कि रायन सीक्रेस्ट प्लेइंग रायन सीक्रेस्ट इन अ शो दैट इज लाइक फिक्शनल. बढ़िया सीन है. पर वो ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है ना, फिक्शनल. हाँ, पर अजय उस प्लेन में था तब भी. ही वाज. नहीं भाई हमारे को एज पर दी NDA वी हैव टू स्टेट कि अजय एक फ्लाइट में था जो क्रैश हो रही थी. अच्छा आई हैवंट वॉच्ड द फिल्म. और क्या फिल्म का नाम क्या है? रनवे 34. हमारे टाइम पे उसका वो मेडे. हाँ मेडे का वो बना रहे थे. होने वाला था. फिर उसका बाद में जब मूवी आई तो रनवे. इंडिया में लोग समझते हैं ना मेडे का मतलब क्या होता है, इसलिए मेडे हमारी गांड फट रही है. मेडे. भाई मैं भी इंडिया आर्ट फेयर पे गया था ना, मेरे पास वॉकी टॉकी था भाई. बहन जो क्या मजे आते हैं. तो वॉकी टॉकी तो उन लोगों के पास नहीं होता कि देयर इज अ किसी ने उल्टी कर दी है गाइस. एवरीवन हैज अ वॉकी टॉकी. उस पे चैनल होते हैं भाई. मैंने वॉकी टॉकी पूरे चला के
2-3 किलोमीटर की रेंज है. चैनल 10 मेरे को इसकी जरूरत है. चैनल 10 कम इन there's a fire at the gate. Channel 10 events just like यहाँ पे we have all these great phone technologies. डेटा पैक मिलता है 800 रुपये का, लेकिन फ़ोन आज भी घटिया होते हैं. लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं because the phone networks unanimously across the country are so bad. But if we get walkie talkies, bro, जैसे लोग डिस्कॉर्ड पे नहीं बैठ रहे थे पूरे दिन, जो सोशली आइसोलेटेड हो गए हैं थोड़े से. बिल्कुल सच है, बिल्कुल डिस्कॉर्ड पे बैठे रहते हैं ना कि डिस्कॉर्ड पे भाई वीसी पे आ जाओ, अकेला फील हो रहा है. वीसी आ जाओ भाई, वीसी आ जाओ गाइस. अकेला फील हो रहा है. That makes me take a trip down the memory lane. क्यों ऐसा क्या है? मेरे पे शॉट ले रहा है. अच्छा तो यही करता था क्या वीसी? मतलब मेरे दोस्त वीसी पे बहुत बैठते हैं. अच्छा बैठते हैं रात में. मैंने भी ट्राई करा लाइक. अरे नहीं, मैं वो ले रहा हूँ, दीपक भैया वाली बात कर रहा हूँ. वो कौन सी? क्या भैया? मुझे बड़ा अकेला फील हो रहा है. अच्छा ठीक है. क्या चीज़? कौन है भाई? दीपक भैया. अरे तो हम एक बार एक जगह गए हुए थे, तो मैं, मेरा दोस्त, उसके भैया और ये, ठीक है. तो अब हमारा क्या सीन हुआ कि हम शायद सिटी से दूर रह रहे थे काफ़ी, है ना. तो हमें सिटी में जाना था और थोड़ा खाना वाना लेके आना था, थोड़ा चिप्स लानी थी, थोड़ी बियर लानी थी, ठीक है. तो हमने कहा हम जाएंगे. अर्पित ने बोला मैं वर्कआउट करूँगा भाई. ठीक है, ऑब्वियसली, मतलब ठीक है भाई कर ले. तो जाने से पहले मर्द वाले पब आ रहा था, तैयार हो रहा था उस कमरे में ही. तो मैंने भैया को बोला कि भैया देखना, अभी जब हम चले जाएंगे ना, आपके पास थोड़ी देर में फ़ोन आएगा भैया. मुझे बड़ा अकेला लग रहा है, मैं आ जाऊँ क्या? ठीक है, लगता है वो, क्योंकि वो भैया नीचे जाके बैठ गए थे, अपनी कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड कर रहे थे. वो नहीं जा रहे थे, सिर्फ मैं और दोस्त थे जो हम जा रहे थे ड्राइवर को लेके. तो हम गए. ठीक है, उसके बाद हम वापस आए तो भैया ने बोला कि भाई एग्जैक्ट वही चीज़ हुई. मेरे पास फ़ोन आया, हाँ भैया. वो ना मुझे थोड़ा अकेला सा लग रहा था भैया. मैं आ जाऊँ क्या? भाई मैं क्या करता भाई, ऐसा हो जाता है. इंसान को अकेला लगता है, उतना तरह की चीज़ें करता है, जाके स्टैंड अप करता है, गाने वाने गाता है, इंस्टाग्राम पे लाइव जाता है, फट जाता है भाई. जिंदगी टेक ऑफ. यार भाई मैं तो समझ नहीं पाता आज भी इंस्टाग्राम, जैसे तू कभी कभी इंस्टाग्राम पे लाइव जाता है, मतलब लोग क्या क्या बातें पूछते हैं. मैं तो उसके अंदर भी जाके कुछ ना कुछ एक लिख देता हूँ. अजीब सीन होता है. क्या पूछते हैं? अजीब चीजें. मतलब इसकी इंस्टाग्राम लाइव तो इतनी अजीब सी होती है विटनेस भाई. वैसे पता है ये ना डिह्यूमनाइज्ड है लोगों की नजरों में. ये इंसान ही नहीं है बहन. ये एक चलता फिरता पुर्जा है जिसका सिर्फ काम है हंसाना या कोई उल्टी बात बोलना. मैं देखता भाई ये एक इंसान है, मैच इसकी नॉर्मली बात करो. बड़े आराम है यार. बट आई लाइक इट जब वो फेस टू फेस होते हैं ना, तो एकदम से वो हो जाता है. क्या उनकी कान फट जाती है. बिग फैन भाई, बिग फैन. एकदम से स्विच हो जाता है. इसे कंटेंट गिल्टी प्लेजर है आज भी लोगों के लिए. मतलब वो बोलेंगे नहीं, वो देखते हैं लेकिन वो फॉलो भी नहीं करेंगे, लेकिन वो देखते हैं, बोलते हैं हाँ मैंने इसका देखा हुआ है ऐसे, क्योंकि इट्स अ लिटिल अनसेवरी टू शेयर इट शिट. Yeah. Nobody wants to admit they're watching Arpit Bala. It's like sniffing your farts. Arpit Bhalla भाई. Yeah. बट पापा यार, आप थोड़े आजकल रैप के सीन से कम आपके थोड़े और सीन चल रहे हैं आजकल, तो जरा आप उस पे. हाँ भाई, जॉब. यू गॉट अ जॉब. ब्रो मतलब इट्स लाइक कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था यार. मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ लाइफ में. एंड देयर वाज दिस थिंग कि मैं अपने घर से नहीं लेना चाहता भाई कुछ भी. तो इट्स लाइक बहुत ढीला रहा हूँ भाई हमेशा से. मेरे को भी पता है ये बात कि मैं काफ़ी थोड़ा हो जाएगा और हुई भी हैं चीज़ें. नॉट सेइंग कि नहीं भी, ठीक है, बट बहुत डिसऑर्गेनाइज था वो. कि मतलब बर्स्ट आए, उस बर्स्ट में बहुत सारा काम हो गया, फिर ऐसे ही 2-3 महीने कुछ हो ही नहीं रहा. इंस्पिरेशन पे मतलब रिलाई करता था, जो कुछ आ रहा है तो आ रहा है. वो डिसिप्लिन वाला फैक्टर नहीं था भाई. और ना सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से मेरी गांड फटती थी कि भाई यार फक यार जॉब यार. तो फिर एक दिन ना आई वाज लाइक कि फक इट भाई, सबसे पहले यही कर लेते हैं, बहन की चूत बाद में देखी जाएगी. एक राइट ऑफ पैसेज की तूने एटलीस्ट कब काम करना सीख लिया है मतलब. एंड ट्रू है कि उसके बाद से थोड़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं, थोड़ा वो हुआ है. वर्क एथिक. तेरे ऑफिस में पता है लोगों को रैप करता है तू, बिकॉज़ दैट विल बी लाइक अ फनी स्टोरी, यू नो, जैसे वो टिपिकल दिखाते हैं पिक्चरों के अंदर. यार पता है मैं कभी उस चीज़ के बारे में मतलब जिक्र भी नहीं करना आई गेस. हाँ मतलब मैं अपने गानों में नहीं बोलना चाहता. इट्स बेटर, क्योंकि मैंने इतनी सॉफ्ट स्टोरीज देख ली है ना यार उस चीज़ की कि वो बहन चो मतलब वो ये एक रैप वीडियो होती है, ब्लैक एंड वाइट से स्टार्ट होती है, एक बंदे ने टाई पहन रखी है. हाँ. ठीक है, फिर वो ऐसे निकलते हुए अपनी टाई ऐसे कर रहा है, वो बहन चो आज तो गांड फट गई वेन्यू के अंदर. हाँ. मैं पासवर्ड बोलूंगा अंदर घुसूंगा. एंड नो हेट टू हिम, वही होता है. बट इतनी बार देख लिया है ना वो कि मतलब अब मैं ही नहीं निकलता ऑफिस से. वैसे अब मैं ही थोड़ा बहन से खुश होकर ही निकलता हूँ ऑफिस से. ऐसे नहीं निकलना भाई.
ये क्या बकचोदी है ये क्या रंडी रोना है तू खुद से आया है ना, मतलब I changed the narrative. हाँ भाई, क्या चीज? I changed the narrative. कहानी बना बैठा है ये. कानने से याद आया यार, बड़ा बुरा सा लगा मेरे को यार. कहानी वाला सीन. किम कार्दाशियन वो बेचारा कहा हो गया यार, वाह को मेंटल हेल्थ की दिक्कत है, तू अपना हाँ भाई. देख I ले guess उसको. अभी के टाइम पे कान्ये वेस्ट, किम कार्दाशियन, विल स्मिथ, जेडा स्मिथ और जॉनी डेप और एम्बर हर्ड, हाँ. सबकी गांड फट रही है. मतलब सब बहुत बहुत मेजर सीन है. बप्पा ट्रेंडी है. थैंक्स भाई, एक के बाद एक SEO कर दिया आपने. हम तो शॉर्ट काटेंगे इसकी 2 मिलियन व्यूज वाली. सबके सीन लगे पड़े ये तो भाई मैं इस बात पे सरप्राइज हूँ कि जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का ट्रायल पहली बार पब्लिक हुआ है. लाइक यू नो, लाइक द फैक्ट दैट यू कैन जस्ट, अभी तुम यूट्यूब खोलोगे ना, जॉनी डेप एम्बर हर्ड ट्रायल डे 15 लाइव स्ट्रीम हो रहा होगा भाई उस पूरे. हाँ, यूएसए में तो बहुत सारे होते हैं ऐसे. बट लाइक आई हैव नेवर सीन लाइक अ पब्लिक ट्रायल ऑफ दैट. ओजे सिम्पसन वाला वो तो पुराने जमाने में हुआ होगा ना. लाइक YouTube पे कौन लाइव स्ट्रीम करता है ब्रो ऐसे? लाइक व्हाई इज दैट इवन YouTube पे अलाउड? लाइव स्ट्रीम होता है उनका ट्रायल. नहीं, यूट्यूब अगर उस जमाने में होता एट तो ऑल फिर हो टाइम्स जाता. लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है, वो ट्रायल लाइव आ रहा होता है. तो तब ओजे का मतलब टीवी पे आ रहा था. पर ये एक सीन क्या है, मतलब ये लाइव और प्राइवेट वाला क्या आई हैव सीन नो है? आइडिया. लाइक इतने सारे और ट्रायल्स होते हैं. आई थिंक दे पब्लिकली, हो सकता है उन्होंने डिसाइड करा हो कि यार इसको डिफेम करा गया है, तो लेट्स जस्ट यू नो लाइक लेट द पब्लिक डिसाइड. मतलब कह सकते हैं, मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा यूएस में इट्स लाइक अ रियलिस्ट लीगल सिस्टम. दे रिलाई नॉट ओनली ऑन द वर्ड ऑफ लॉ कि मतलब या फिर स्टैट्यूट या फिर केस लॉज, दे ऑल्सो रिलाई ऑन पब्लिक ओपिनियन. जूरी सिस्टम. भाई थैंक गॉड यू आर द रेजिडेंट लीगल एक्सपर्ट. आई वाज गोना रन आउट ऑफ कि भाई पता नहीं सच है या नहीं है. नहीं. जूरी तो होती है. हाँ, जूरी भी होती है. एंड दे डू कंसिडर कि मतलब अमेरिकन पब्लिक क्या सोचती है एक जजमेंट को लेके. दैट्स व्हाई द यूट्यूब थिंग. नॉट नेसेसरली, बट इट हैज इट्स jurisprudence in that, जो लीगल प्रिंसिपल तुम कर सकते हो. लाइक अगर हम दोनों किसी ट्रायल में फंसेंगे, वी कैन टेक्निकली लाइव स्ट्रीम और ट्रायल फ्रॉम द कोर्ट ऑन. जरूरी नहीं है, कुछ होते हैं अगर जैसे कोई फेडरल मैटर है जिसमें स्टेट इन्वॉल्व है, और वो वाले नहीं होते हैं. फेडरल मैटर में तो राजा गुजर भाई फंस गए शायद. ओह माय गॉड, आई डू नॉट वांट मैटर हो गया. आई प्लीड द फिफ्थ. नहीं, कोई मुझे कह रहा था कि उनकी बीफ चल रही है बॉबी कटारिया के साथ. यू शुड गेट हिम ऑन अगेन. आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू एंटर दिस वर्ल्ड. या डोंट लेट दिस बी अ वो योर डिफाइनिंग फैक्टर. नो, नॉट डिफाइनिंग फैक्टर कि मतलब यहाँ पे बैठ के लोग प्रचार कर रहे हैं. I should be the Rohan Karyappa of TikTok stars. Anyway, but यार ये मतलब you know Johnny Depp was a fantastic guy. We loved him in Pirates. बहुत बढ़िया सीन था उसका. Then he was defamed. Apparently 127 करोड़ मिलने वाले थे भैंचो Pirates 6 के लिए. Akshay Kumar takes 135. I was like, bitch, like this is how far Hollywood has come only. You know. But Amber Heard fucked him over, and अब suddenly ऐसा हो गया Johnny Depp is this icon in everyone's eyes again कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है. And she's being hated by everyone. And I'm just wondering, devil's advocate कौन है जो बोल रहा है कि नहीं भाई एम्बर की गलती नहीं थी. Is there anyone here? यार गलती नहीं थी या वो नहीं थी, तो मेरे को वर्थ ही नहीं लगता कि मतलब बात करने का, क्योंकि ऑब्वियसली भाई देख ही नहीं रहा मेरे को तो कुछ, क्योंकि हम रह थोड़ी रहे हैं भाई उनके साथ घर में. तो कह रहे भाई टट्टी करी उसने भाई वो बप्पा, that is what I wanted to talk about. ट्रेडिशनल जाट मेंटालिटी भाई. मियां बीवी का है चक्कर. ये अपना घर में संभाली भाई. डोमेस्टिक मैटर है, हम नहीं आते अंदर. हम नहीं थिंग इज कि भाई भैंचो क्या क्या बकचोदियां चल रही हैं भाई. पप्पा जाके जॉनी डेप क्या क्या है भाई. पप्पा जाके जॉनी डेप से बोलता, भैया इसको नहीं सुलझा लो, फालतू में कीचड़ उछलेगा. हगा तो उछाली नाम भी दिया है. खराब होगा, शान भी खराब होगी, क्या फायदा. इतने बड़े हो यार, इतने बड़े हो गए हो, मतलब छोटे छोटे बच्चे देखते हैं यार भैया. पर भाई मेरे को वही लगता है कि मतलब क्या लाइफ होती होगी भाई कि मतलब तुम हग रहे हो किसी के बेड पे. मतलब मैंने बहुत डार्क शिट करी यार अपने हिसाब से, पर मैं सोच नहीं सकता कि भाई कि मैं बैठ के हग दूं भाई किसी के बिस्तर पे. फक भाई. मूतना इज लाइक स्टिल लाइक ओके. हाँ भाई मूतना तो चल कोई बात नहीं, मतलब सोच भी ले एक इंसान एक पल को, पर हगता कौन है भाई. तक जाके साफ भी हो जाएगा नया गद्दा आके, लेकिन हगना तो मतलब इट्स सो नाइस ना. पप्पा टोटली डिसरिगार्डेड द फैक्ट कि मतलब जॉनी डेप की उंगली कट गई थी पूरी की पूरी, सब कुछ जो उसको मतलब अच्छे खासे ब्रूजेस लगे थे. पॉटी कैसे कर दी आपने बिस्तर पे, पॉटी क्यों करी. जैसे कि शेम पॉपी शेम नहीं बोला इसको, तो इस बात का गुस्सा है उसकी. डिस्गस्टिंग भाई, डिस्गस्टिंग. बट उसकी ही ऑल्सो बिकेम फेमस एट द एज ऑफ 20. जैसे माइक टाइसन वाली चीज़ थी ना ब्रो, इतनी अर्ली एज पे इतना ज़्यादा फेम मिल जाना ना मैच नेशनल इंटरनेशनल लेवल. आई कैन इमेजिन लाइक अ मैन मस्ट गो क्रेजी. यू लुक एट लाइक वो कौन था जो केविन था होम अलोन वाला. वो बेंच कई साल तक तो उसने नशे करे. देन ही लाइक वाज लाइक कि अब मैं जॉनी डेप ने भी तो करे ही हैं.
उसमें तो करेंगे। जॉनी डेप पूरे टाइम, जॉनी डेप, चार्ली शीन, इन सबका ग्रुप है पूरा, ये साथ में बैठते हैं ये सारे। वो मार्लन ब्रांडो, हंटर एस थॉमसन, शीन का पता नहीं, पर ये सारे बैठते थे। लाइक ही यूज्ड टू लव दीस गाइस। अपेरेंटली हंटर एस थॉमसन की एक विश थी कि भाई मेरी ना अस्थियों को बहन 4 जगह फैला दी। जॉनी डेप ने बहन एक कैनन खरीदी, अस्थियाँ डाली, हंटर एस थॉमसन की राइटर था वो, जगह जगह फैला दी। बहुत इसका बड़ा नशेड़ियों का गैंग था। अच्छा, जो मतलब पुराने होते हैं स्टार्स वगैरह। हाँ, मार्लन ब्रांडो भी था। मार्लन ब्रांडो इसका खास वो था। तो कई बार बोलता है यार हम बहनचो उस जमाने के हैं, इतने बड़े नशेड़ी, आजकल के लौंडे आ गए हैं जो बहनचो वीगन बनते, हमसे तो ना होता भाई, हम तो पहले पुराने नशेड़ी हैं। स्कॉच विद रॉक, अड्डाबाजी करते थे जो। अब जैसे वाकिन फीनिक्स सर है, बहनचो बताओ आपने ऑस्कर्स की स्पीच दी, वहाँ भी आप कह रहे हो यार जानवर मर रहे हैं। अरे भोसड़ी के ये बोल के यार शुक्रिया, माँ का शुक्रिया, बाप का शुक्रिया, कितनी बड़ी बात है। पिक्चर वहाँ हैं जो कॉजेज, जब फिल्म स्टार कॉजेज की बात करते हैं ना, मैं कहा भाई यार थोड़ा इतना तो मत करो यार, तुम कहाँ एकदम से तू पिक्चर में ही कर देता। भाई नहीं करते तब भी गांड मारते हैं, करते हैं तब भी गांड मारते हैं। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक आई मीन आई एम श्योर ही इज टेकिंग द स्टैंड व्हाटएवर, इट जस्ट फील्स अ लिटिल बिट वियर्ड। मेरे को ऐसा लगता है कि या हो सकता है मैं जो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं कि भाई यार मैं एक आदमी मीट इज मर्डर टाइप की चीज़ को बचा लूँ, यू नो, ताकि ना हो। बट इट जस्ट कम्स लाइक फॉर एग्जांपल लियो डी कैप्रियो, वो आदमी लेता है मौज भाई वाह को मतलब ना कायते भी कसम से। उसका ये वाला सीन है ना कि पहले तो उसने एनवायरनमेंट का करा, फिर उसने बहन ले ली यॉच पूरी, बहुत बड़ी सी, जिसमें पता नहीं कितना पेट्रोल जाता होगा, और प्लेन भी फिर, और उसके बाद द फैक्ट कि वो 25 से ऊपर डेट नहीं करता, टोटली इररिलेवेंट, बट वो एडेड था किसी रीजन से उस आर्टिकल में जो मैंने पढ़ा था। बट हाँ, एम्बर हर्ड वाले ट्रायल से ये भी निकल के आया कि अपेरेंटली एक टाइम पे जब जॉनी भाई अपनी पिक्चर में गए हुए थे, थ्रीसम हुआ था, इलॉन मस्क भाई ने कमेंट नहीं करा उस पर, क्योंकि वो सबसे बड़े आदमी बन गए दुनिया के। पर बहनचो एक टाइम आदमी सोचता है यार वाह यार तैन तो मौज ले ली है कि नहीं। मतलब एक तरफ आपके कारा डेलवीन है जो उस टाइम की अच्छी अप्सरा रही है, एक तरफ एम्बर हर्ड है जो भी अपनी एक्वामैन में आई है, और आप इलॉन मस्क, उसका तो पेटिशन साइंटिस्ट हो गया था, निकालो इसे, किसका, हटा दो एक्वामैन से, हमें नहीं देखना इसे। तू बोल आगे क्या कह रहा था? मैं कह रहा हूँ आप कंप्यूटर साइंटिस्ट, कल आपके परसों तक बाल नहीं था, आपने बाल लगवाए, आप दुनिया राज पर राज कर रहे हो, एक्ट्रेस कह रही भाई आप ही हो। पैसा बोलता है पैसा आदमी से ज्यादा बोलता है भाई। बढ़िया भाई, मैं देखता हूँ यूनानिमसली लोग जितना सपोर्ट करते हैं ना इलॉन मस्क को, मेरे को तो नहीं लगता ब्रो। बहुत सारे लोग इलॉन मस्क के फैन बॉयज इसलिए हैं बिकॉज मतलब दे रिफ्यूज टू बिलीव कि मतलब वो आदमी, मेरे को तो बहुत लगता है कि यार इलॉन मस्क ना सोशल मीडिया को बहुत वैसे यूज करता है, वो जो होते हैं ना जैसे बिलियनियर्स की अपनी वैनिटी के लिए ऊपर खर्च करना है पैसा। देखो मैं कितना कूल हूँ गाइस, कूल वाली कूल हूँ मैंने ट्विटर खरीद लिया देख भाई मीम बढ़िया बनाता है जो भी है, ठीक है ब्रो। मतलब बट मेरे को इलॉन मस्क को देख के फिर भी थोड़ा सा फिशी वाली चीज तो आती है। बेजोस को देख के नहीं आती, बहुत आती है ब्रो। बेजोस की हंसी देखी, उसने अपनी किताब में एड्रेस कर रहा है भाई मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, ना मैं रेप्टिलियन हूँ, ना मैं इल्यूमिनाटी हूँ, मेरी हंसी ऐसी है। उसमें उसकी माँ का बयान भी नहीं जी इसकी हंसी ऐसी है समझ सकता हूँ। हाँ, पर देखो ऐसा होता है जब आप पे इतना पैसा आ जाता है कहीं ना कहीं तलाक हो ही जाता है ना, आदमी के पास बहुत चीज़ें हो जाती हैं यार। मतलब मैंने सारे अमीर ही लोगों को करते हुए देखा है ऐसा, अमीर और पॉलिटिशियन बड़ी जिम्मेदारी जैसा रहती है कि मतलब वो फक ऐसा भी होता है। तभी ना हमें अमीर बनना ही नहीं बनना ही नहीं, पैसा हराम है। जैसे बिल गेट्स की हम कितनी प्रशंसा करते थे कि कितना अच्छा आदमी है, अब उसके कच्चे चिट्टे खुल गए हैं, अपेरेंटली बहन जो बड़ा करप्ट है, और कह रहा है कि भाई मीट इज़ मर्डर, ये घटिया सा मीटलेस वो खाओ। जो लोगों ने उसकी एक दिन ले रहा था, कह रहा भाई बताओ ऐसे से तो उसके ऑर्डर जैसे हाथ हैं, बहन जो तुंदू हो रहा है और हमें बता रहा है बहन जो कि मीट नहीं खाना, और तो उसकी बीवी ने भी तलाक दे दिया। खैर क्या हम तो अपनी बात कर सकते हैं रैप रूप की, और मैं यार कि मैं क्या बोलूँ, मतलब इलॉन मस्क, वाकिन फीनिक्स, हम होते कौन है यार, हम पे बहन जो 10 रुपये करने आए जो पोर्टफोलियो के नाम पे लौड़ा है हम पे भाई कसम से यार। ऐड तो डेली आती है लेकिन SIP ले लो भाई, ये कर लो वो कर लो। हम पे बहन जो पैसा तभी आता है जब कॉल आता है जी आपको 4 लाख का लोन चाहिए था भाई मेरे पास एक बार फ़ोन आया, क्या आप हाई सोसाइटी की गर्ल्स का सेक्स करना चाहते हैं? मैं जिम में बैठा हुआ था, मैंने कहा हैं? कहती सर क्या आप हाई सोसाइटी की गर्ल्स का सेक्स करना चाहते हैं? सामने ट्रेनर बैठा हुआ था, मैंने कहा नहीं।
मैंने सोचा हाँ बोल देना चाहिए था हाई सोसाइटी गर्ल्स कि एटलीस्ट देखते तो लाइक कहाँ लेके जाते हैं, मतलब कौन ऐसे लोग हैं जो मतलब बोलते हैं कि यार मेल एस्कॉर्ट बुलाते हैं आज, फिर विनम्र जाके देखता है इज इट हाई इनफ फॉर मी? नो Like, I'm just यार इसके लिए मैं दोस्त कास्ट तो नहीं छोड़ सकता यार। या छोड़ सकता हूँ छोड़ सकता हूँ शायद। मैं इमेजिन करता हूँ जैसे तुम एक इन्हीं को गेस्ट बना के बुला लेता हूँ। भाई थियो वॉन ये चीज़ करता था। थियो वॉन कॉमेडियन है ना, उसके गेस्ट कुछ और होंगे पर उसके भैंस उसके दिमाग से अटकता है, कह रहा आज एक प्लम्बर को बुलाऊंगा। तो भाई कौन से पाइप जोड़ते हो आप? वो एक स्ट्रिपर को बुलाया, उसने एक पॉन्सर को बुलाया, वो रेगुलर जॉब्स वाले ब्लू कॉलर वर्कर्स को भैंस रेगुलरली बुलाता रहता है। तो भाई हाँ वो बढ़िया चीज़ है ब्रो, बहुत अच्छी चीज़ है वो। आई फील लाइक उनका पर्सपेक्टिव मैटर इसलिए करता है क्योंकि तुम्हारे को एक तमाचा पड़ता है रियलिटी का ना। दूसरा कॉमेडियन भाई आ रहा है, मिलियन की डील लेके आ रहे हैं अमेज़न प्राइम से, उन्हें क्या पता। बट आई डोंट थिंक ये सेम चीज़ कोई इंडिया में कर सकता है। कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? पर समाज की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी सेक्स वर्कर को बुलाओगे तो फिर वो भाई कैमरे पे आ जाएगी, तो फिर वही है कि वाइस की तरह ब्लैकआउट करना पड़ेगा चेहरा अंधेरे में, घूंघट पहनाना पड़ेगा। घूंघट क्यों बनाना पड़ेगा? मतलब मैं कह रहा हूँ ना, जाट मेंटालिटी जाती नहीं है भाई वो मतलब ऐसे अपना मुंह पप्पा के घर में कोई भी लड़की आती है ना, पप्पा ऐसे पहले करता है फिर डकार लेके हरि ओम ओम फॉर रियल भाई। बट लाइक मेरे को ऐसा लगता है भाई इंडिया के अंदर मैं जो पॉडकास्टिंग के अंदर ना अभी लोग इंटरव्यू वगैरह ही कर रहे हैं कि भाई कुछ मोटिवेट। आप बताओ आपने क्या किया है, आपके इसके बारे में क्या व्यूज है? जर्नी बताओ यार, आपका स्टार्टअप क्यों चल रहा है ना। आई एम गेट इट, लाइक इंडिया के अंदर बहन जो जरूरत है ऐसे कैपिटलिस्ट आइकॉन्स की जो बहन जो बोले कि पैसे कमाना चाहिए, लेकिन मौज मस्ती बहुत कम जगहों पे हो रही है। नहीं होती। कहाँ होती है? नहीं होती। हर जगह जाके बोलते तो अर्पित भाई क्या चल रहा है आपकी म्यूजिक करियर के अंदर? भाई मौज मस्ती पता क्या होती है? सैफ अली खान से, सर आप थर्सडे को कौन सा कस्टर्ड खाते हैं? क्या खाना पसंद करते हैं सर आप? हाँ भाई मैं वो गाजर वाला खाता हूँ, और वो जो तैमूर है वो कुछ नहीं खाता। यार मेरे को ना सैफ का ना एक बार तूने याद है शेयर किया था जिसके अंदर बोलता है आप कौन सी पोएम्स पढ़ते हैं? फैज और गालिब पढ़ता हूँ। ये भी उम्र होती है पढ़ने की। मेरे अब्बा जी पढ़ते हैं, मेरी अम्मी जहाँ पढ़ती हैं। द हाईएस्ट द बेस्ट लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट ना फन वाला व्हिच पीपल हैव इज लाइक कॉफी विद करण, या फिर वो कपिल, कि जिसमें वो अरे कपिल ने दिशा पटानी छेड़ दी भाई, अरे भाई देखो क्या बोल रहा है भाई, ये बकचोदी चलती है भाई। भाई कपिल इज फकिंग ग्रेट। कपिल की जब भी बात इट्स ग्रेट बट स्टिल मतलब यार वो रॉ वाला वो शिट थी यार, मतलब वो फैमिली फ्रेंडली वाला हो गया यार। अनसेंसर्ड डैंक मीम रिव्यू करना शुरू करने वाले हम लोग दोस्त कास्ट पे, जो हम बेंचो सिर्फ मेंबर्स के लिए लगाया करेंगे, जिसके अंदर हम बेंचो वो सब दिखाया करेंगे जो बहुत ही डैंक होते हैं। मेरा दोस्त है समर, उसका कुत्तों वाले चीन्स वाले बहुत डैंक मीम्स पड़े हुए हैं, तो मेरे को वो अच्छा लगा। ऊपर भाई क्या होता है ना, एक्चुअली लोग आप तो शिकार हो ही चुके हो कई बार इसके, लोग समझ नहीं पाते, उनको थोड़ा सेफ। मुझे कौन कह रहा था कि कॉमेडियंस कैंसिल इसलिए होते हैं बिकॉज तुम्हारे पास सिर्फ उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए कमेंट सेक्शन है या FIR है, एक तुम्हारे पास सेम स्टेज नहीं है बोलने के लिए कि तू चूतिया है। इसलिए फिर वो लोग ऑफेंड होकर रिपोर्ट कर देते हैं, बिकॉज इट्स नॉट लाइक दे हेट व्हाट यू सेड, दे जस्ट हेट द फैक्ट दैट दे कांट से देयर ओन थिंग, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए वो कमेंट सेक्शन फ्लड कर देते हैं, रीट्वीट कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। वीरदास को देख लो ब्रो, बेंचो कर दिया उसने 2 इंडियाज वाला काम। आई एडमिट लाइक ही इज इन द फनीएस्ट गाय, बट ही इज बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग दैट you know like he's the guy who can say some shit like that, जो बेंचो इंडिया के नाम पे स्टैंड ले सकता है और तुम कुछ कर नहीं सकते उसका, you just hate from a distance। ये तो है। ये मैंने किसी आर्टिकल में सेम पॉइंट पढ़ा था। क्या चीज़? कि हमारे पास मतलब बहुत सारे लोगों के पास एक्सेस और उतना बड़ा स्टेज नहीं होता है, तो फिर वो मैल प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हैं टू मेक स्टेटमेंट्स और टू गेट देयर पॉइंट अक्रॉस। जैसे मैल प्रैक्टिसेस कैसी? FIR दर्ज करवाना और थ्रेट्स करवाना, घर के बाहर आ जाना गुंडे लेके। डेव शपेल भी तो अभी भैंचो अटैक टैकल करा है किसने उसे, मतलब इट वाज सच अ पुसी टैकल दो, वो मारा और खुद ही गिर गया वहाँ पे। मैंने ये सुना था कि हमारे कॉलेज में रफ्तार आया था और उसको मतलब धर लिया था, फिर उन्होंने उसने नहीं बोला बैंड की चूत वो जो क्लिप हुई थी वायरल, भाई जी छोड़ दो कुछ ऐसा हुआ था कि उसको मतलब पीछे एक बंद रोड जाती है कॉलेज के, वहीं पे उसकी गाड़ी रोक ली थी, ऐसा सुनने में आया था। और ये होता है पता नहीं स्टेज पे चढ़ रहे होंगे, उसने कुछ बोला होगा पीछे हट जाओ, या फिर कुछ ये वो, या फिर मतलब थोड़ा तमीज से एंजॉय कर। मैं कह रहा हूँ ना, जब मतलब एक मॉब मेंटालिटी आ जाती है ना इंडिया में, तो बहुत और फिर उन्होंने अब तो इसकी वो करेंगे, और मतलब शायद रोक लिया उसको वहाँ पे, और फिर भाई मार दिया।
फिर उसके बाद वो कह रहा था मैं कभी दोबारा एमिटी नहीं आऊँगा, ऐसे कुछ ट्वीट या मूवी डाली थी। Allegedly, do we have proof for this or no? क्या हमें पता है ये सच है? I think it's all hearsay. Quite possible. Quite possible. क्योंकि ऐसी चीज़ें कोई मतलब पब्लिकली लेकर नहीं आता, मतलब इट्स बैड, वो जो होता है ना बैड PR। हाँ भाई, मैंने ये भी सुना है, मेरे को कई दोस्त जो एमिटी गए हैं बताते हैं भाई लोग अपने बैग में गन भी लेके आते थे, गन का सिस्टम भी बड़ा चलता था एमिटी में। बहुत वाइड तरह का क्राउड आता है वहाँ पे। अब ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यार गन कल्चर इंडिया का इतना अजीब है ना, मेरे को ये लगता है कि भैंचोद हमारे यहाँ पे जिस तरीके से गोलियां चलाते हैं, अगर ये लोग आर्मी में चले गए सामने भैंचोद दुश्मन आ रहे, ये लोग ठा गोली मारी, खुद ही भाग गए गोली मार के हवा में भाई गोली से शक्ति प्रदर्शन करते हैं ऊपर की तरफ, ठा मारी और भैंचोद दुश्मन देख रहा है ज्यादा है। मतलब AR-15 वाली मेंटालिटी नहीं है कि बच्चे भी सीख रहे हैं भाई इस नोजल से मैंने यूं मारा। मतलब एमिटी और हमारे कॉलेजेस में जो बंदूकें आती हैं वो ये वाली चीजें नहीं आती कि मतलब डोंट कम टू स्कूल टुमारो। हमारे कॉलेज में नहीं होता, हमारे यहाँ पे तो पूरा मेटल डिटेक्टर। इंडिया में कभी स्कूल शूटिंग इंसिडेंट हुए नहीं मेरे ख्याल से, कभी स्कूल शूटिंग कभी भी नहीं हुई है भाई। रैन स्कूल गुड़गांव क्या नर्सरी क्लास के बच्चे के साथ में क्या किया था, गन की जरूरत थोड़ी है। हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, उस डायरेक्शन में मत जा यार अभी। नहीं मेरे को ये याद है बचपन में देखना, एक बार एक बंदा है वो उसकी किसी से बनती नहीं थी, उसके पापा के टीवी के कैबिनेट के नीचे गन रखे रहते थे, एक दिन वो ले गया बहन मार दिया उसने। ये सब सीन होता है यार, होता है बिल्कुल होता है। स्कूल शूटिंग वाली इंडिया में चीज इसलिए नहीं होती क्योंकि इतनी एम्यूनिशन नहीं है नॉर्मल घरों में। एग्जैक्टली गवर्नमेंट मैंडेटेड 6 गोलियां मिलेंगी तुम्हें, यूएस में ज्यादा होता है। वो बोलता है बहन जो रुक जाओ प्लीज भाई रुक जा, 5 चला चुका हूँ भाई। हाँ इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं है ना कि बहन जो कई सारे लोग छुट्टी टाइम पे बस 6 चलाती है जो मरा एक्शन के स्कूल टाइम वाले बच्चे को असैसिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गोल्डन बॉय मिल्टन की फोटो पे उसकी बहन जो नीचे RIP भी लिखा हुआ। भाई do you ever wonder like ये जो एक्शन वाले बच्चे थे, ये किंगशुक वैद्य वगैरह, what are they doing now? Like where are they now? नहीं मैं तो अगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल आता है तो फिर मैं बस सोचता हूँ कि भाई ऐसे मत सोचो दर्शील सफारी के साथ में क्या हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? He's quite old now ना? हम जब छोटे थे 25 What? He's our age? Yeah, Papa thinks about him a lot. 25 single right now. मैंने उसको शाकरा का बूम बूम वाले का एक दिन सर्च करा था, मेरे को सुमित के घर पे ना मैजिक पेंसिल रखी हुई है संजू की, जिससे उसको ओरिजिनल नहीं ओरिजिनल नहीं, वो तो मैंने बिग जाती, खुद उसने बनाई थी, आर्टिस्ट है ना, खुद बनाई थी उसने। अच्छा आप मैजिक पेंसिल से मैजिक पेंसिल बनाई? वो आई वांट 3 फिशेस। उसके नीचे स्केच पेन है, ठीक है, और ऊपर प्रॉपर वो बना रखी है। तो फिर मैंने कहा यार ये संजू कौन है, सर्च करते हैं, मेरे को उसके नाम याद थे क्योंकि मैंने क्रेडिट्स पढ़े बचपन में, यार संजू से मिलूंगा बहनचो, क्योंकि मुझे लगता था कि यार बहनचो अगर मेरे को वो मैजिक पेंसिल मिल गई तो एक आध गाड़ी या घोड़ा तो मैं भी बना सकता हूँ। मेरे को एक्चुअली लगता था ड्राइंग कर सकता हूँ इतनी, मतलब भाई बंदे ने ड्राइंग करी इस चीज़ के लिए कि मैजिक पेंसिल जब मिलेगी तो मेरे पास दौलत आएगी। मैंने सर्च करा ना किंगशुक वैद्य ब्रो, उसके इंस्टाग्राम पे ब्लूटिक वगैरह है, कुछ 30-40 हज़ार फॉलोअर है, और वो मतलब ऐसे शूट ओवर जाता है सीरियल एक्टर की तरह। ही जस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम लाइक दैट टू समथिंग एल्स, यू नो। बट यार मैं ये भी सोचता हूँ किसी की अगर बहनचो ड्राइंग खराब हो तो उसको क्या करेगा फिर? वो बहनचो सिर्फ और सिर्फ रिटार्डेड चीजें खराब फोन खराब गाड़ी माय गॉड, मैंने अभी देखा था कोई ऐसी ये जो हाइप ड्रिप कल्चर वगैरह ही होता है, उसके अंदर घड़ी निकल के आई है जो एक्चुअली ऐसी जो ख़राब घड़ी नहीं होती, जो टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, उसकी वो चलती भी नहीं है, कितने मिलियंस की बिकी है भाई। हाइप वाले ना बस जो उनका मन करता है उस पर दाम लगा देते हैं और सारे बोलते हैं भाई हमें तो ये चाहिए। That's just the way it works. आपको क्या लगा फूसी गैंग क्यों फटा? फूसी गैंग क्यों फटा? I'm curious because it was so absurd, no? Yeah, that's why. It was so absurd. Like cool है क्यों मैं बोल रहा हूँ कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि तुमने कुछ ब्रो हमारी ना विजन ही होनी चाहिए, लाइक हमारे कलर्स ही होने चाहिए, और हमारा लाइक मैं जो गाड़ी में बैठ के मुझे ये भी याद है तुम्हारी वीडियो उसके अंदर ये कह रहा है कि नहीं ये जगह सही है, तू कह रहा है भाई ये जगह सेफ नहीं है रैप करने के लिए। क्या चल रहा है ये? पापा मैं बोलता हूँ भाई वो आगे से आ रहा है यार, एक आदमी आ रहा है भाई, कभी कुछ नहीं हो रहा, चलना कर। पर रैप करने में क्या दिक्कत है? हैं? अच्छा नहीं यार वो जगह ना वो पूरा का पूरा वो जो थीम था ना वो वाला पूरा सेट, इट वाज टू शो दिस होमो इरोटिसिज्म बिटवीन अस। ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ सेफ नहीं है। तू उसे किस भी करने की कोशिश करता था, कई बार मैंने देखा है कि someone even made a fucking comic where you're kissing him bro, like imagine तुम बोलते तुम कल्चर का हिस्सा नहीं हो। हम लोग कल्चर का हिस्सा नहीं है, we're bringing representation to the table. All right भाई,
by culturally appropriating it. पर ऐसा लगता है तो मैं बच्चे रीच आउट करते हैं भैया जब से आपने बनाया मुझे लगता है मैं भी रैपर बन सकता हूँ. आई एम श्योर यू मस्ट गेट लाइक इन द 10,000 हेट मैसेजेस यू गेट. एक तो आता होगा. मेरे को एक बंदे का आया था एक बार मैसेज कि भाई मैं रैप सीखना चाहता हूँ, मुझे बताओ रैप साइफर कहाँ होता है. तूने क्या बोला मेरे घर पे? मैंने बोला बहन जो मैं कभी खुद नहीं गया किसी रैप साइफर, तेरे को क्या भेजूंगा भाई. बट अब होते हैं लाइक साइफर्स एक्चुअली हैपन और इज इट लाइक टू स्प्रेड आउट नाउ? नहीं होते हैं, सब कुछ होता है. फरीदाबाद में भी रैपर्स आ गए हैं ना काफी सारे जो मतलब फरीदाबाद को रैप पहले से थे, अब नाउ दे स्टार्टेड. हाँ, मार्क भाटिया हो गया. आई वुड से कि मार्क भाटिया सुनो, मनदीप, मार्क भाटिया, इवन अंश फॉर श्योर, वो भी अच्छा. उससे मेरी मैसेज पे बात हुई है. हाँ, अंश फॉर श्योर से. सही सीन है ब्रो. फकिंग लाइक जो लोग कल्चर के लिए कुछ कर रहे हैं ना, वो दियो अपना. वो यही लोग हैं भाई जो लोग कल्चर के लिए सही में कुछ, जिन लोगों ने करने की कोशिश करी है. क्या करते हैं वो? नहर पार फिक्स कराते हैं. मतलब कल्चर क्या है बेसिकली? वो क्या होता है कि जब ऐसा सीन हो जाता है कि तुम अकेले अगर सिर्फ रैपर हो, तुम्हारे को सिर्फ लिखना आता है, यू डोंट नो कि स्टूडियो टाइम क्या होता है, यू डोंट नो कि बीट्स कैसे बनती हैं, रिकॉर्ड कैसे होता है. तो जब बहुत सारे लाइक माइंडेड इंडिविजुअल जैसे मिल जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों के लिए बार्टर सिस्टम की तरह बन जाता है एक स्टेज. Does anyone make money at all in this? शुरू में बहुत मुश्किल होता है. Like does Skier make money because he produces? पता है कौन मेरे हिसाब से देखो मेरे हिसाब से रैपर्स तो नहीं कमाते. मेरे हिसाब से कमाते हैं एडिटर्स, मेरे हिसाब से कमाते हैं प्रोड्यूसर्स, कम कमाते हैं. पर आई गेस सबसे ज़्यादा जो कमाते हुए लोगों को मैंने देखा है, दे आर द पीपल हु शूट एंड दे आर द पीपल हु एडिट. So like शुरू for your gigs did you get money? हाँ, मेरे को मिला था. हाँ, it was nice, yeah, decent amount. मतलब आई वुड से कि मतलब रैपर्स कभी नहीं पैसा कमा पाते, ऐसा नहीं है. लॉन्ग रन में आई वुड से कि रैपर्स और ये लोगों के पास ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है बिकॉज उनका आईपी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वे यू आर प्लेइंग इट. मतलब सपोज कर ले कोई रैपर है, उसके 5 गाने हैं और 5 पे 10 मिलियन है, ठीक है. और उसके साइड में ही एक और रैपर है जिसके गानों पे होंगे ऐसे 10 के, किसी पे 70, किसी पे 100, किसी पे 150, मैक्सिमम 500 के या मैक्सिमम मिलियन. पर उसके गाने 100 हैं, वो ज़्यादा कमा रहा होगा उस दूसरे वाले. Like Sikandar Kalon must be making a fuck ton, no? Yeah. Because he has like 1,000 songs out at least. Yeah. He's great. That is like if you just consider ad revenue, और ad revenue को तो मतलब ज़्यादा पैसे आते भी नहीं इंडिया में. तो आई वुड से कि ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा, मतलब जितने तुम्हारे व्यूज़ हैं उसके हिसाब से काफ़ी टोटल व्यूज हो जाते हैं यार. मतलब भाई एक चीज़ होती है यूट्यूब पे CPM, लाइक डिपेंड करता है वो CPM जितना मेरे को समझ में आया डिपेंड्स ऑन कि जो देख रहा है उसकी परचेजिंग पावर क्या है. नहीं विनम्र, तुम मेरे को एक बात बताओ. तुम डालते हो पॉडकास्ट एंड टच वुड, उसको बहुत सारे लोग देखते हैं, तो ऑफ कोर्स वॉच टाइम बहुत ज़्यादा है. तो ऑफ कोर्स मिलेगा. गाने कितने सेकंड, कितने मिनट के होते हैं. बट देन व्हेन यू प्ले द व्यूज गेम, नो, तभी तो व्यूज गेम में भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट की वॉच टाइम है तुम्हारे पास. हाँ, परचेजिंग पावर का भी चीज़ होता है ब्रो. बिकॉज अगर तुम्हारे को 14-15 साल के बच्चे देख रहे हैं ना, तो वो यूट्यूब समझ जाता है कि इनकी परचेजिंग पावर काफ़ी कम है वर्सेस लाइक से समवन वाचिंग जियोपॉलिटिक्स वगैरह, उसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी. तो इवन दो अगर वो 4 मिनट का भी है ना, यू विल मेक मोर मनी. सो दैट इज ऑल्सो देयर. लाइक लेजिट जो पुनीत सुपरस्टार को देखते हैं उनका इतनी परचेजिंग पावर नहीं है. इट्स मोस्टली एज अपोज टू समवन हु वॉचेस लाइक अ पॉलिटिक्स एक्सपर्ट या ऐसा कुछ, तो वो चीज़ तो हो जाती है. लाइक रैप के अंदर लाइक यू नो लाइक आइडली लाइक इट्स लाइक पीपल हो लाइक कि ब्रो हाँ वैसे फक करते हैं बट हम भी छोटे ही हैं एज में. तो ये सीन होता है. पैसे वाला सीन तो मैंने देख लिया ब्रो कि मतलब शुरू में सबकी गांड फटती है कि वेंचर्स में गेम में पैसा नहीं है एंड एवरीथिंग. तुम्हारे को जैसे तैसे करके हसल करके दिमाग जुगाड़ लगा के वीडियोस डालनी होती है, एवरीथिंग अपने तरीके हैं जैसे करना है करो. बट एक पॉइंट आता है जब 1-2 गाने फट जाते हैं एवरीथिंग एंड यू कैन लाइक गो आउट एंड डू गिग्स, तो उसके सारे पैसे तुम अपने जेब में रख सकते हो. एंड हाउ यू हसल विद इट, लाइक हाउ तुम उस स्ट्रीमिंग रेवेन्यू तो कुछ नहीं आता होगा, ज़्यादा नहीं आता. स्पॉटिफाई का भी बहुत कम है, यूट्यूब, बट इट गिव्स यू रीच दो. या एंड इंस्टाग्राम म्यूजिक के अंदर भी तुम्हारा गाना ऊपर चल रहा है. तो आई वुडंट से कि लाइक सिर्फ पैसे के उस पर देखो, कि पहले ये देखो कि एक स्ट्रॉन्ग IP होना चाहिए तुम्हारा, कि मतलब दैट इज रिकॉग्नाइजेबल and you have a community around it. Did you arrive at this from law या फिर like generally industry में देख के? नहीं bro, I think this is law तो only helps you protect your IP. It doesn't define कि मतलब अच्छी IP क्या होती है. मतलब ये आइडिया भी कैसा है, क्योंकि लोग नहीं सोचते ऐसा कि हम IP बनाए हुए हैं जो ये IP as in कि भाई तुम्हारे को ये देखना होता है कि मतलब जितना मैंने देखा है like अजय and everything, they always try to establish themselves as a brand first and getting money from it second. कि मतलब गुडविल और ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारे पास अच्छी खासी हैं और तुम लॉन्ग रन में हो, बस गेम में हो एंड पीपल नो अबाउट इट एंड नो दैट यू आर यूनिक, तो आई विल से कि मतलब
जब तुम फटोगे बिकॉज फटना तो है ही, एक ना तो एक दिन तो फटते है ही। एक तो ऐसी है जिसको मतलब वीडियो रीच मिल ही जाती है, चाहे मिल ही जाती है ना। सेक्टर 28 पे भी 2 लाख या 3 लाख व्यूज है ना। हाँ या तो भाई आई वुड से कि मतलब अगर तुम लोग अपना आईपी को अच्छे से यूज़ करते हो एंड एवरीथिंग, तो फिर तुम्हारे को गिग्स मिलना बहुत आसान हो जाएगा। शुरू में तुम्हारे को बहुत सारे ठुकराए मतलब मिलते हैं कि मतलब यू डू नॉट कन्फर्म टू द आइडियल मेन स्ट्रीम, मिलता है, होता है, बट वंस यू ब्रेक दैट बैरियर ना, जिसके अंदर द मेन स्ट्रीम इज फोर्स टू अंडरस्टैंड कि तुम क्या हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और ये चीज़ हुई थी शुरू में हमारे को बहुत सारी गेट कीपिंग, मेरे को तो बहुत ज़्यादा गेट कीपिंग का शिकार, मतलब यू वर नॉट लेट इनटू थिंग्स। हाँ, हिप हॉप या फिर इवन जैसे मैं कॉमेडी में भी घुसा था, पीपल फर्स्ट व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मेरे को कॉमेडी में लोग बोलते थे कि दिस इज नॉट फनी, यू आर जस्ट रिटार्डेड और ऑटिस्टिक, ठीक है, एंड इट टुक सम टाइम फॉर पीपल टू रिकॉग्नाइज मे बी ही इज, सो लेट्स जस्ट गिव हिम सिंपैथी लाफ्स। आई एम जस्ट किडिंग, नहीं, एक पॉइंट के बाद पीपल वर जस्ट, दे जस्ट अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू और आईपी बन गया। सेम विद हिप हॉप, शुरू में जब मैंने सेक्टर 28 निकाला था, लोगों को लग रहा था कि दिस इज नॉट रैप, ये क्या बकचोदी है। It was comical rap. हाँ, it was not even comical, it was just absurd and parodying. Yeah, but like एक तो होता है like you know like Al Yankovic जो parody करता था पहले, right? Like एक होता है parody करना without musical ability, एक होता है parody करना with like great musical ability. That's when like you're like bro, हाँ this is gonna take a space in the culture. क्या सीन था कि जब हम ऐसे वो करते थे तो मेरा तो पहले से म्यूजिक में था ही, एंड आई ऑल्सो न्यू दैट ही कुड ऑल्सो डू लाइक रियली वेल, ठीक है। तो एक चॉइस थी यार वो हमारी कि भाई मतलब फन किस चीज़ से आ रहा है, हम कुछ हार्ड बना सकते हैं और वो ठीक है कुछ दिनों पे चलता है जब उस टाइप का मूड हो, बट इन जनरल हम कैसे हैं, हम बकचोदी मिलते रहते हैं आपस में, ठीक है। तो उसी बात पे सीधा हमने बकचोदी करने शुरू कर दिया। ऑब्वियसली हमारा उस पर क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं था, हमारा उस पर ध्यान था मज़ा किस में आ रहा है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जो रीलर्स बनाते हैं ना, POV और दिस, मेरे को एक बच्चा ना POV आया, मैंने सब रीलर्स को आइडिया दिया, किसी ने नहीं करा। POV और खोखे वाला वो लाइटर चला के देते हैं ना जो ऐसे चल रहा है। Like, I feel like ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए, जैसे कि भाई आपने मदन लाल को 18 रुपये पेटीएम कर दिए बिकॉज आपको आइस बर्स खरीदनी थी। मैं सही में कह रहा हूँ ना, द पूरा का पूरा सीन जो है ना, मतलब जब एक पॉइंट पे आता है, हर क्रिएटर के लिए होता है कि वो ना एक प्लेट्यू पे आ जाते हैं, लाइक दे आर ट्राइंग सो हार्ड बाय बीइंग क्वर्की और यूनिक, बाय स्टिकिंग टू देयर ग्राउंड्स, एंड वो देखते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, तो उनके पास एक चॉइस होती है, शुड आई जस्ट बी मेन स्ट्रीम क्योंकि उससे व्यूज़ आ जाएंगे। आई वुड से कि नहीं, कि वो जो प्लेट्यू है ना उस पर लगे रहो और तुम्हारे को क्रिएटिवली खेलना है मेन स्ट्रीम और उसके साथ में वो हो जाएगा ब्रो। जो क्रिएटिविटी डिकोड करते हैं लोग, वो प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं ये क्रिएटिव प्लेटो या जो वैली आती है कैसी होता है। लाइक तुम स्टार्ट करते हो इनिशियली, तुम्हारा ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाता है, देन वो बहुत समय तक स्टेगनेंट हो जाता है, एंड देन इट गोज डाउन फर्दर, यू आर लाइक फक एवरीथिंग, एंड देन गोज ऑल द वे अप। काफी बार इट्स आल्सो लाइक कि तुम्हें रियलाइज होता है कि यू वर डूइंग द राइट थिंग ऑल अलोंग, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, इट्स जस्ट दैट लोगों ने सुना ही नहीं था। एंड नाउ दैट लोगों ने सुन लिया है तो लोग तुम्हारे पिछले काम पे भी जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई फक हैपेंड विद मी आल्सो, कि ऐसे काफ़ी सारे मेरे पुराने गाने पे जिन पे मैं देखता था बीच में कमेंट्स आ रहे हैं कि ओ फक 2-3 लोग सुन रहे हैं डेली, कोई ना कोई नया ढूंढ रहा है, कोई ना कोई रिप्लाई कर रहा है स्टोरी पे कि भाई बढ़िया तो लगता होगा ना व्हेन यू सी योर स्पॉटिफाई एंड इट सेज लाइक इतने मंथली लिसनर्स, द फैक्ट दैट इतने सारे लोग ट्यून इन कर रहे हैं तुम्हारा सामान सुनने के लिए ब्रो, लाइक ऑल लव भाई, ऑल लव। क्योंकि हमने कभी ये वाली एक्सपेक्टेशन लेके नहीं करा कि इतना वो हो जाए, इतना वो हो जाए। मेरे को अभी भी याद है सेक्टर 28 के टाइम पे हम लोगों ने बोला था 5,000, हमने बोला 5,000 आएंगे भाई, 5,000। क्रेजी सेंस वगैरह ने भी उस पे रिएक्ट, मतलब बहुत हल्ला मचा था ब्रो, बिकॉज़ इट वाज सच अ, द म्यूजिक वीडियो इज आल्सो सुपर फनी। और बस बहुत सिंपल सी चीज़ थी मेरे हिसाब से, इतना कुछ वो नहीं था, हम बस हार्ड चीज़ें, मतलब हार्ड टोन में चूतिया चीज़ें बोल रहे थे, ठीक है, और मतलब थोड़ा कैंडिड वे में ही बोल रहे थे, तो वो आई गेस कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक बन गया सबके लिए। When I listened to जगा दो, I was also impressed by Rishu's verse and that guy Paradox, मैंने उसकी वर्स 3 टोन्स के अंदर वो गा रहा है, मतलब I was like bro crazy। मैंने भी उसके फिर 1-2 गाने और सुने, like fucking great collaborators bro। काफ़ी बढ़िया सीन। मैं तो like I listen to जगा दो every now and then, मेरे को फिर एक अलग तरीके की कहा, शायद मैं अगर सबको सुनाऊंगा ना तो बोलेंगे ये क्या अजीब सी चीज़ है, बिकॉज they have to like have the context कि इन लोगों से मिले हैं, चिल कर रहा है, फिर वो गाने सुन रहे हैं। बट फॉर एग्जाम्पल योर वर्ड्स, मैंने इसके तो पहले सुने हुए, तू तो बहनचोद इतने गुस्से में लगता है उसके अंदर, मेरे को लगता है तेरा एक दूसरा ही पर्सनालिटी निकल के आता है। हाँ जगह तो मैं बताऊँ क्या हुआ था, काइंड ऑफ अ फनी स्टोरी। आई स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी वाइब में आके, फिर ना क्या हुआ, पैराडॉक्स आया, उसने अपना वर्स ड्रॉप किया, वाज लाइक
यो व्हाट द फक, क्योंकि ऐसा हो रहा था, स्केल ऐसा हो रहा था, ऋषु उठाता है मैं पूरा गिरा देता हूँ, मतलब वाइब वाइज की, मतलब है ना, फिर भप्पा भी उसको ऐसे ट्रफ करते हुए ऊपर लेकर जाता है, और पैराडॉक्स बैंचो ऐसे करता है टक 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 टक, फिर नीचे गिराता है. आई वाज लाइक ना, आई डोंट वांट टू बी द ट्रफ गाय मैन. ट्रफ क्या होता है? अरे नीचे वो ऐसे वो ट्रफ होता है ना, मिलिट्री वाले क्रॉल करते हैं उनमें, वो नीचे आ जाता है ना, ग्राफ ऐसे नीचे हाथ हल्की सी नीचे दबा रखी एक जगह से, बाकी जगह से नॉर्मल लेवल है. या तो फिर आई वाज लाइक ना, तो उसके बाद आई वाज लाइक कि नहीं ब्रो, इस बार ही थोड़ा सा हार्ड करते हैं, जिससे ऐसा ना लगे कि हम लोग पीछे रह गए. इट वाज लाइक कान्ये और वो वाला जो गाना था ना, जिसके अंदर एमिनेम, ड्रेक सारे आ गए थे, तो रीराइट कर रहा. हाँ 5-6 बारी मैंने रीराइट किया था वो वाला वर्स. तो पर गुस्सा किस बात पे था तू? नहीं, बट आई थिंक रीराइटिंग हैबिट है तेरी. मैंने पहले भी नोटिस करा है. अर्पित एक गिराएगा, मेरा क्या, इसका और मेरा उल्टा सीन है इस मामले में. मैं एक गिराऊंगा, अब या तो वो जितना भी अच्छा होगा पर वो ही रहेगा फिर. अब इसके बाद मैं दोबारा लिख रहा है इस बीट पे, ये लिख के दे दिया. ऑन द स्पॉट जब तुम गिग कर रहे हो मन नहीं करता चेंज करने का? जैसे मैं कोई गाना भी गा रहा होता हूँ, मैंने वो गाना गाया, मैं किसी और तरीके से गाऊंगा उसे हर बार. लाइक डू यू नॉट फील लाइक आई कैन से समथिंग एल्स? बट दैट्स द होल पॉइंट ऑफ लाइक वो अगर तुम करोगे तो फिर इट्स नॉट जैज, इट्स हिप हॉप. नो, यू कैन नॉट चेंज इट ऑन स्पॉट. I feel that. Do you ever like forget the lyrics to your own music? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ. अभी बने ही नहीं इतने गाने कि भूल जाए. सॉरी भाई, करियर में अर्ली आ गए हैं लोग थोड़े. एक्चुअली मेरे कुछ गाने हो गए हैं 2 साल पुराने, तो हाँ मतलब आई वुड से कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि मेरे को लिरिक बाय लिरिक ना याद हो कि मैंने क्या करा. So like for example, Rishu is not a conventional rapper, he's a YouTuber first, right? Like if someone is a YouTuber and they want to just get into like just, क्योंकि लोग ये भी करते हैं ना, राइट ऑफ पैसेज भाई यूट्यूब चैनल है, एक ट्रैक हेट आती है भाई, बहुत हेट आती है. मतलब ऐसे बोलते हैं कि ये क्यों करने की कोशिश कर रहा है बहन जो, तू कल्चर का पार्ट नहीं है. मेरे अपने दोस्त वो जो है, मतलब जो म्यूजिक सीन में, दे आर लाइक यू नो दे टॉक शिट अबाउट लाइक यूट्यूबर्स. और उनकी पता है मतलब आई गेस म्यूजिशियंस को बुरा इस बात का ज़्यादा लगता है कि वो भूसड़ी वाले यूट्यूबरों के ज़्यादा व्यूज ले जाते हैं ना. इस बात पे आई फील लाइक कि भाई म्यूजिक वालों हाँ मेरे को, और गाना उनके हिसाब से शिटी होता है ऑब्वियसली क्वालिटी वाइज. मेरे को एक चीज़ बताना, क्या लौड़ा यूट्यूब लगा रखा है कि मैं यूट्यूबर और तू नहीं है. साले तेरा सारा गाना अगर तू बहन यूट्यूब पे मार्केट करके यूट्यूब पे फट रहा है तो कौन है यूट्यूबर गांडू? करेक्ट, यू आर टेक्निकली यूजर ऑफ द प्लेटफॉर्म, से यूट्यूबर. मैं चाहूँ वही सेम चीज बहन कहीं इंस्टाग्राम पे डालूं तो इंस्टाग्रामर बन गया मैं बहन. वाह भाई लौड़िया भाई, इंस्टाग्रामर से दूर रहना यार, ये अच्छे नहीं है. तो भाई मैं आई फील लाइक देयर इज इनहेरेंट लाइक गेट कीपिंग इन हिप हॉप. हमेशा से थी, हमेशा से रही है. But gatekeeping for what? Isn't it supposed to be democratic? That's the whole point of. नहीं, that's the whole point. Who is the elite? मतलब कि क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि महाराजा महारानी चला रहे हैं हिप हॉप, रेगुलर लड़के लौंडे चला रहे हैं. मतलब हिप हॉप एंड जो हिप हॉप में जो गेट कीपिंग होती है वो बड़े अलग तरीके की होती है. इट्स ऑल अबाउट योर प्रिविलेज, योर रियलिटीज एंड हाउ यू ट्राई टू डिस्क्राइब इट. जो आदमी यू हैव टू फिट अ पर्टिकुलर मोल्ड टू डू रैप. क्योंकि जैसे सपोज करो क्लासिकल म्यूजिक एंड एवरीथिंग, यू हैव टू गो थ्रू लाइक रिगरस ट्रेनिंग, राइट, टू अंडरस्टैंड शिट. जैज में भी यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द नोट्स एंड लाइक कॉम्पोजिशंस एंड एवरीथिंग टू गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. रॉक में भी एंड एवरीथिंग. सो देयर इज अ, जैसे चेस में होता है ना, यू हैव टू लर्न सर्टेन मूव्स टू अंडरस्टैंड द गेम. और मतलब एक पूरा राइट ऑफ पैसेज होता है कि इनिशिएशन होता है, पूरा का पूरा तुम्हारे को समझना पड़ता है. तो इट्स अ वेरी लॉन्ग थिंग. तो उसमें गेट कीपिंग प्रोसीजर वाइज होती है. हिप हॉप में गेट कीपिंग इज अ मोर ऑफ अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, because procedure gatekeeping nahi hai. So like how would you typically be gate kept from because see like I don't think you're a rapper because you do R&B music. I don't think you're a hip hop artist because you do R&B. ठीक है. I don't think you're a hip hop artist because you don't do gangster shit enough. तो ये प्योरिस्ट करते हैं, लाइक जो लोग सोचते हैं कि एक प्योरिस्ट कह सकते हैं उनको. कुछ लोग होते हैं कि भाई प्योरिस्ट तो वो हो गए कि मतलब रैप सिर्फ और सिर्फ ऐसा होता है दैट इज मीनिंगफुल या फिर हार्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे मम्बल रैप और वो वाली चीज़ होती है, राइट, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं. हाँ, जैसे रोहन करियप्पा बोलता है, क्योंकि रैप एक इतनी एक्सेसिबल चीज़ है ना कि कोई भी कर सकता है अगर चाहे तो. ऐसा नहीं है कि मतलब प्रोसीजरल वो दिक्कतें आती हैं कि मतलब तुम्हारे को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है एंड एवरीथिंग. कोई भी कर सकता है. हाँ. तो इसीलिए ना इसके अंदर गेट कीपिंग अलग तरीके की होती है. तुम्हारी आइडेंटिटी को ही चैलेंज कर दिया जाता है कि तू, तेरे को क्या पता, तूने क्या स्ट्रगल देखा है, फॉर एग्जांपल. क्योंकि हिप हॉप इंटायरली जो हिप हॉप है ना, इट्स वेरी कॉन्फ्रंटेशनल इन इट्स ओन सेंस. मतलब जैसा हिप हॉप है, जैसे शुरू में यूएस में भी बना था एंड एवरीथिंग, इट वाज वेरी कॉन्फ्रंटेशनल कि लोग एक तो बहुत ज़्यादा ब्रैग करना होता है और दूसरा होता है कि सामने वाले को नीचे गिराना. हाँ. तो I would say it's like gatekeeping is part and parcel. There is no भलाई और भाईचारा हिप हॉप then. वो तभी होता है जब कोई रैपर मरता है.
जैसे उसके साथ हुआ था ना, हु इज द गाय हु डाइड, निप्सी हसल जब मरता है तो फिर सारे के सारे आ जाते हैं, क्रिप्स और ब्लड्स एक साथ हाथ बैंडाना मार के आ जाते हैं। और हाँ ये सब तो चलता रहता है। आई वुड से कि ये गेट कीपिंग तो है भाई। मेरे साथ बहुत ज़्यादा फेस हुई थी जब मैंने अन्वेषणा और इन सब का EP का निकाला था ना, तो ये लोग ऐसे बोल रहे थे ये सारे यूट्यूबर, इन लोगों को कुछ हासिल करना नहीं आता है ना। आजकल के म्यूजिशियन यूट्यूबर्स जो इन लोगों को हासिल करना नहीं आता। तो सॉरी भाई, मेरे पास 10 साल नहीं है चूतिया कटाने के लिए। वही तो मतलब, दे आर नॉट वेरी क्रिएटिव, दे डोंट थिंक। उनको लगता है कि मतलब एक राइट ऑफ पैसेज जो है ना वैसे ही होना चाहिए। सारे के सारे रैपर्स को ऐसे भाई राइट ऑफ पैसेज करना है, जिंदगी में जिम्मेदारी उठाओ ना मैं अपने घर। मतलब देयर आर सो मेनी अदर वेज टू प्ले द गेम। व्हाई डू यू हैव टू हैव योर जॉब करके कर लेता पैसे, मैं तो ना कर रहा। मैं क्यों करूं? मैं अपना टाइम का बढ़िया, लाइक यू गॉट लाइक फकिंग ग्रेट फंड्स, नो पीपल लाइक रियली सपोर्टेड इट। जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा पता नहीं होगा, बट द मार्केट रिस्पोंडेड 2 दिन में, बिकॉज़ यू आर गिविंग सो मच फ्री कंटेंट फॉर सो लॉन्ग ना, कि पीपल वर लाइक कि ब्रो हाँ लाइक दिस इज ग्रेट। तो उसके ऊपर मेरे को मतलब 2 हफ्तों तक गालियां पड़ी हैं। 2 हफ्तों तक गालियां पड़ी। तू पैसे ले रहा है? हाँ, कि मैं भिखारी हूँ, आई डोंट डिजर्व व्हाट आई एम डूइंग, ये सारा पैसा तूने चोरी का है, इट वाज ऑल भीख। आई वाज लाइक ओके मादर चोद, लोगों ने खुद दिए हैं। हाँ लोगों ने खुद पेटीएम करके दिए हैं भाई। हाँ मतलब क्या चोर? मैं मतलब वो नहीं करा मैंने, कोई भिखारी ने हाथ नहीं मांगा। तू चोर, तेरा बाप चोर। It's crazy. Like I remember हम जब बात भी कर रहे थे, you know, अमित भड़ाना reached out saying कि वो करना है। I was like bro fucking crazy. The fact that you were on his radar was super cool. Yeah. You know, and nice. And like it's great that you just went to the market and said कि bro मेरे को ये एल्बम बनानी है, मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ, help out, and people helped out. Like it's just legit. I never said कि मेरे को हेल्प की बहुत डेस्परेट नीड है। आई जस्ट सेड कि भाई तुम अगर मेरे फैंस हो, तुम्हारे को मेरा काम पसंद है, दे दो भाई अगर दे सकते हो तो। अगर नहीं दे सकते तो शेयर कर लो, अगर तुम्हारा कोई और दोस्त है जिसने ये पोस्ट ना देखा हो। That's what it was. I wasn't doing कि मेरे पापा की डेथ होने वाली है guys. I didn't say that shit, bro. I didn't say that shit कि मेरे को बहनचो ऐसा कुछ चाहिए. I'm not saying कि that's wrong. Yeah. I was not asking for charity. That's what I'm saying. Yeah, and I mean like bro, more power to you. When Anveshna comes out, when Fuzi mixtape comes out, people are going to see it and realize. Bhai, I'll be very honest. जैसी EP drop होगी ना, सारे लोग बोलेंगे this is mid, this is mid, this is mid. Mid क्या होता है? Very forgettable, average, ऐसा कुछ नहीं. I'll be very honest. ठीक है. बट आई थिंक मेरे को है भाई, मतलब आई थिंक मेरे को है अच्छी खासी म्यूज़िक की पहचान, एंड जितनी भी मेरी है उसके हिसाब से आई थिंक दिस विल ब्रेक ग्राउंड्स। आई एम श्योर बहुत आराम से। बहुत आराम से। इवन Fuzi Gang sitting in a car that broke grounds, bro. So ये तो देखते हैं, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि मतलब मिड विड बोलेंगे, बट मेरा पॉइंट यही है, मैंने तो लाख उठा लिए, मैंने तो लाख रुपया उठा लिया। ठीक है, होना चाहिए। कब तक मुफ्त का काम करोगे? मार्केट में कभी ना कभी तो जाना पड़ता है। हम तो गए मार्केट में, लाइक इट ऑल पेड ऑफ ओनली, राइट? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेइंग कि ब्रो मैं अभी भी हासिल कर रहा हूँ? ये ना भाई, ये ना एक बैंड ऑफ स्केर्सिटी माइंडसेट होता है लोगों का, कि उनको लगता है कि द वर्ल्ड विल सडनली गिव देम समथिंग। दे हैव प्रॉब्लम्स विद आस्किंग द वर्ल्ड, सेइंग कि ब्रो आई हैव गिवन यू सो मच, आई नीड समथिंग इन रिटर्न। उनको लगता है कि ओ मैं जनता के सामने ना एक रॉबिन हुड टाइप का फिगर ऐसा बना रहा हूँ कि देखो भाई फलाने भाई जिनका फर्स्ट नेम इंग्लिश है, लास्ट नेम भाई है, कितना ज़्यादा सैक्रिफिशियल है। वो उनके दिमाग में ना एक नैरेटिव है ऑफ द स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, जो मतलब जिंदगी भर। आई हेट दैट ब्रो, व्हाई? वो नहीं है यार, वो अप्लाई नहीं करता। लाइक यू कुड बी स्ट्रगलिंग बट यू कुड स्टिल बी हैप्पी दैट इतने स्ट्रगल करने के बाद भी। आई वुड लाइक टू एडवोकेट फॉर द हसलर आर्टिस्ट, जो हसलर किड वाला जो होता है, जो मतलब जुगाड़ करके अपना सीन करा लेता है। भाई इस बिल में मेरा भी नाम दे दो यार प्लीज। हाँ, बिकॉज ब्रो ठीक है ब्रो, मेनी पीपल आर टैलेंटेड एंड आई कैन, मतलब ये रियलिटी बहुत हार्श रियलिटी है। यू कैन बी टैलेंटेड बट द वर्ल्ड स्टिल डज नॉट ओ यू एनीथिंग। दैट्स ट्रू, है ना? तो उसके लिए ना यू हैव टू प्लग योरसेल्फ, यू हैव टू हसल इट आउट, यू हैव टू नेटवर्क। टॉकिंग अबाउट नेटवर्क, यार अगर तुम्हारा ये जो यू नो लाइक ये रैप आर्ट वाला इकोसिस्टम है, लाइक हाउ इंपॉर्टेंट हैज योर सोशल लाइफ बीन इन लाइक क्रैकिंग ऑल ऑफ दिस? यू तुम भी बहन जो जगह जगह जाके हाजिरी दे रहे होते हो, फलाने के साथ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, वहाँ बैठे हो। आई सी सुमित डूइंग इट, सुमित डज इट ऑल द टाइम। सुमित 36 जगह जाके बहन जो हाजिरी देता है। फ्रेंड्स एंड ऑल, राइट? हाँ, सो लाइक दैट्स ओनली फॉर लाइक रियली टाइट पीपल। नहीं तो नहीं, we don't do it just because कि हमारे को किसी के साथ टाइट होना है तो इसलिए हम वहाँ पे शो अप। No, I'm just saying like जो हम कल्चर की बात कर रहे थे ना, तुम उस सीन के अंदर हो, people know who you are, you're accessible। नेटवर्किंग में क्या होता है ना, थोड़ा सा एस्पेक्ट आ जाता है प्रिटेंशियसनेस का और थोड़ी बहुत फेक वाली शिट का भी, कि मतलब इट्स लाइक कि ठीक है, इट्स गुड टू नो एवरीवन, बट मतलब तू एक बंदे से तभी वाइब कर पाएगा ना अगर तुम दोनों एक दूसरे के लिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट शेयर करते होगे। एंड रिस्पेक्ट इज हार्ड टू गेट, एंड रिस्पेक्ट इज हार्ड टू गेट, एंड इट इज आल्सो हार्ड टू अर्न। ठीक है, मतलब
काफी बार ऐसा होता है कि तुम नहीं होते हो। सेम, मैं वही देख रहा था, सेम बात बोली। सेम ब्रो, सेम। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। हाँ बट लाइक इन द सेंस कि यू कैन लाइक समवन्स वर्क बट उसको जाके बोलना है भाई आई रिस्पेक्ट योर वर्क, आपने बड़ा, दैट इज लाइक हार्ड। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं काम अच्छा करते हैं, बाद आदमी से बात करते हो तब रियलाइज होता है भाई आर्ट और आर्टिस्ट को सेपरेट ही करना चाहिए। या जेन्युइनली एग्जैक्टली। मेरे को ना ये चीज़ तो थी कि यूट्यूबर्स आर द मोस्ट डिप्रेस्ड पीपल एंड म्यूजिशियंस आर द मोस्ट इनसिक्योर पीपल। यस, ये जो डिवीजन मैंने देखा ना, आई वाज लाइक कि डैम, मेरे को लगा था कि यूट्यूबर्स में ही होगा, ये सारे डिप्रेस्ड बैठे रहते हैं, इतना ज़्यादा एक्ट करते हैं कि कूल फनी क्वर्की एंड एवरीथिंग, बट जैसे ही 4 बजते हैं और उनके नोटिफिकेशन आने बंद हो जाते हैं, उनकी गांड फटती है और वो लाइव आके अपने रंडी रोने करते हैं। ओके। एंड देन देयर आर म्यूजिशियंस जो पूरे टाइम दे विल बी लाइक आई एम एन ऑथर, I want to create music, I want to break grounds, but जब तुम उनका क्रिएटिव प्रोसेस देखते हो, यार ये स्विगी मंगा लो यार, भाई रोल कर दे यार, भाई वो वाली कॉपी दिखाइयो, उसमें क्या लिखा था। डिसिप्लिन, लाइक हैव यू कम अक्रॉस लाइक डिसिप्लिन यूट्यूबर्स, डिसिप्लिन गाइस? क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई मतलब आई एम श्योर यार ये मेरे साथ भी हुआ है कि बेंच पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत समय तक स्ट्रगल कर रहा था पुराने चैनल के साथ, बट आई रियलाइज कि मैं अगर डेली काम करता रहूँगा ना सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। एंड लाइक ऑल्सो भाई मैं अपनी सेल्फ वर्थ को अब अटैच नहीं करता इन चीज़ों से, क्योंकि बेंचो जिंदगी आदमी जी नहीं सकता भाई मैं तुम्हारा ही हूँ ऑडियंस, भाई तुम्हारे बिना मैं कुछ लाइक तुम्हें बेंचो एक एक्टिव जिंदगी कहीं और बनानी पड़ती है प्राइवेटली टू कार्व आउट लाइक अ लाइफ, बिकॉज इफ यू आर जस्ट ऑन द इंटरनेट ऑल द टाइम लाइक यू आर बाउंड टू लाइक वो ग्राफ की तरह है, बेंचो आज लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, कल नहीं पसंद कर रहे, क्या करोगे फिर? यू नो क्या मतलब कोलैब करोगे वापस वो करने के लिए? जिम पैरोडी पार्ट 2 बना देते हैं चलो। That was a funny video though, very esoteric. समझ में तो आ रहा है कि मतलब आई वुड से कि भाई माँ चुदाएं ब्रो, ये हम कितनी बारी बोल चुके हैं सेम पॉडकास्ट पे, क्या चीज़? माँ चुदाएं ब्रो, जो करना है कर भाई, देखते हैं क्या होगा। हाँ नहीं भाई बढ़िया सीन है, हम भी कई बार पॉडकास्ट कर चुके हैं ना, बातें कुल मिला के ज़िंदगी में आदमी के पास नहीं होती है अनलेस हम दोबारा से बुली की बात करें और तेरे को आइसोलेट कर दें। तो भाई आपने बुली खेली है पप्पा? और ये भी नहीं पप्पा की तरफ देख के, अर्पित की तरफ, बताओ भाई। भाई यार फोमो देने में बहुत मजे आते हैं मैन, लोगों को ना फोमो के भाई आप यार उस पार्टी पे नहीं थे भाई, बड़े मजे आ रहे थे, दारू खुल रही थी, सब लोग यू नो सब मिस आउट कर दिया आपने। हाँ इट्स जस्ट ग्रेट लाइक, but what I never get FOMO from is seeing a rap gig on a bunch of dude stories. I'm like, I'm not missing out. भाई कसम से आधे डोपरमैन है, उसने ना एक बहुत बढ़िया खुलासा किया था, ये जितने भी रैप गिग्स होते हैं मोस्टली क्या होता है, स्टेज पे एक बंदा गा रहा होता है और उसके आगे जो ऑडियंस होती है ना दूसरे आर्टिस्ट होते हैं। कोई ऑडियंस आई ही नहीं होती सिवाय फैमिली एंड फ्रेंड्स के। For the culture bro, मेरा दोस्त सारे लोग गेस्ट लिस्ट पे हैं मैंचो, सारे लोग गेस्ट लिस्ट पे हैं। Ever तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ तुम किसी रैप गिग में घुस नहीं पाए? Like it's never exclusive, you can always get in. हाँ We were close to और तू वहीं था उस दिन? Mic drop पे? नहीं, not mic drop, हमारा ना सीधे तू वहीं तो था जब हम बाहर थे और ऊपर जा रहे थे। Where? कौन सी गिग थी? कौन सा वाला? बहुत पहले हुई थी एक तीसरी दुनिया वाला ना, हाँ जिसके अंदर तेरी एंट्री में थोड़ी सी बीटी हो रही थी। रिजुल आया था, हाँ बॉक्स आउट। मैंने कहा पहचो हम बचपन से समर हाउस आ रहे हैं, जेन्युइनली बॉक्स आउट में नहीं घुसने दे रहे। आ तो जाते बॉक्स आउट में, बट ये वाली बीटी हुई थी हमारे साथ में जब हमारे को जाना था सीधे मौत के गिग में। हाँ। टिकट्स नहीं थी, एंड मोमेंट पे हम लोगों ने जैसे तैसे करके बात करी, काम भाई को फोन किया, काम भाई ने एक और बंदे से बात कराई एंड एवरीथिंग एंड वी गॉट इन। इतना तो दे सकता हूँ अपनी ऑडियंस को, 100 के हो गए हैं, आज बांटूंगा सब। आज सबको दिखा दूंगा। नहीं भाई सही है यार, मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू भाई, मतलब ऐसे ही आई कॉल यू गाइस हियर, यू केम, हमने भैंचो रैप रूप कर दिया, देन यू केम अगेन, यू केम इन अ बंच ऑफ टाइम्स, यू केम इन विद ऋषु। मुझे आइडिया भी नहीं था भैंचो यहाँ बैठे बैठे ये सीन पॉप हो जाएगा, तो मैं भैंचो बड़ा खुश हूँ यार कि थैंक यू गाइस, बिकॉज यू नो टुक, यू बिलीव्ड इन दिस शिट एंड आई डिड नॉट इवन नो कि हम क्या कर रहे हैं। तो cheers to you guys. नहीं भाई यार, थैंक यू भाई, आपने भी हमारे को जगह दी जहाँ पे हम लोग अपने, भाई तुम तो गाने में कह रहे थे जगह दो। हाँ नहीं भाई इट फील्स ग्रेट, और फरीदाबाद की इकोनॉमी राइज करती रहे, फरीदाबाद में डार्क वेब तो बनी रहे। कसाना भाई के साथ एक कोलैब करना चाहिए। हाँ भाई हाँ करा दो यार, मेरे को भी कसा दो रैप की एल्बम में एक इंटरलूड आ रहा है, इसमें बस कसाना स्किट है, जिसमें स्किट है भाई, हमारे एंकर टाइप दोस्त हैं, ये रैप नहीं कर सकते लेकिन इनकी स्किट सुन लो, ये हमारे वरुण ग्रोवर हैं। भाई क्रेजी बट ऑफ कोर्स यू नो पीपल कैन follow you at I am Bappa. Yes. Siddharth Tewatia for privates. Or private Bala. नहीं that is for only knowns. Arpit Bala. Arpit _ Bala. बीच में अकाउंट के साथ। हाँ यार, I don't want to talk about that.
Yeah. So that's it. Yeah, and जब भी भाई फ्रूसी टेप आई सुन लेना और Stream Gulabo and I Lost Myself on Aved Music YouTube. Yeah. And watch out for Anveshna. Yes sir. Yeah, that घोड़े बोल देंगे सबके. he got that handi. ठीक है. All right, see you guys. Bye bye. Bye.